Hi friends, welcome back to Zinc Podcast. So we are in the part 3 of the personal finance series, the conversation with Anil Panikar. So Anil is personal finance enthusiast and he holds a lot of insightful knowledge in personal finance. So in last two episodes, I am sure that you must have watched the complete episodes. In last two episodes, we have talked about a lot of fundamentals of personal finance, including the relationship with money, what is FIRE, what is YOLO, what are the good loans, what are the bad loans, how you have to look at the credit cards, how you have to look at the different insurances. So a lot of things got talked about in two episodes, including how the governments of India, the central government or the state governments, are looking at increasing the consumption at the hands of the people. Anil has talked about extensively about this in the previous two episodes, how the economy is now being led from the consumption point of view. And this is what we had expected. Now we are in the month of February and Union Budget 2025 has just been released. And we are all happy that the government of India has relaxed income tax for the salary of rupees 12.75 lakhs per annum. And that gives a lot of good money in the hands of the people, especially the youngsters or the people who are below the salary threshold. And before you go and either you save this money or you spend this money, I will highly recommend that you watch these personal finance series, and especially this episode where we are again touching upon the benefits of using the budget, how you should go for the planning, and what are the different instruments of investments. So Anil is talking about what is the direct equity, what are the different mutual funds, whether it is flexi cap, multi caps, index funds, what are the ETFs, what is the NPS, for example. He has also talked about how you should look at the investment in property and what point of time in your life ideally you should look at it, and how will you fare when you invest in precious metal like gold or silver. For example, what are REITs? So he has talked about the wills, the benefit of nominations in the banks, in the demat accounts, and how you should safeguard yourself against the cyber frauds. So this is a very interesting episode. I will highly recommend each one of you to watch it completely, and definitely watch the part 1 and part 2 episode as well, and do subscribe to the channel Jing Podcast and keep looking forward to the various episodes on personal finance as well as other diverse topics. Yeah, so happy watching. Thank you. Hi Anil, welcome back to Zing Podcast. Hi Sandeep, how are you? Doing very well, Anil. Hope the same for you. Yeah, same here, same here. Wonderful. So Anil, now we are in the part 3 of the personal finance series. Yes, we are. So I believe many people have watched the part 1 and part 2, and definitely now since the union budget of 2025 is already declared, and there's Yeah. a lot of excitement around, and rightly so. And I Yeah. believe we are on the right time that we should talk about budgeting, we should talk about financial planning, the various instruments of investments, and of course, how do we invest in mutual funds and direct equity and all, right? So let's Yeah. start our conversation with a little bit talk on the budget 2025. Yeah, So what how? a banger for quote unquote middle class, right? It's a great relief. I think people have been stressing on this for a long time. I think we also touched on this a little bit Yes, in our yes. previous discussion. Yeah. But I think we need to emphasize, I think we can emphasize on this part that now the onus is on the person who's going to get this. Should we say hike? Maybe we can say a little bit of a hike after Or April in money their invests salary. in his or her pocket. Money in your pocket, yeah. Yeah. I think अभी आपका वो time आ गया है where you need to show the prudence कि कैसे आप इसको utilize करोगे and how you will kind of use it.
सो हाँ, सो ग्रेट बजट है, I mean, काफी पैसा आया है, उनका बजट हो गया. आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड योर ओन बजट. Own budget, personal Yeah, finance. right, exactly. So I think, any science, बोलते हैं ना, you observe and then you create a hypothesis, right? Otherwise there is no science, a foundation of science. तो budget जब आप बनाते हो, you are exactly doing that, right? So you are trying to observe what you are doing, and then you are going to make certain hypothesis on what you are observing. इतना ही है, बड़ा simple ही है. So let's not make budget a very complex thing, right? I think जो भी personal finance का जो first step है, उसमें you need to be aware of what are you doing with the money. We have talked about the relationship with money. We have talked about the lifestyle habits like YOLO and the practices of FIRE. ये सब हम बात कर चुके हैं. But now you are getting ready with a pen and paper and you are saying कि हाँ यार, अब तो let me sort this out. So essentially हमने ये भी बात कर लिया है, essentially budget is nothing but all the incomes that you're getting and what is the expenses that you're making on that income. And जो बच जाता है, that is your savings. So income minus expenses savings. Savings है, वो investment नहीं है, वो सिर्फ saving है, वो आपने सिर्फ बचा लिया है. We talked about notional and actual savings also. I think you can go and rewatch it if you want to catch up on those concepts. So you should make a budget. You should observe how the money is flowing into your account, where all are you spending, और ये क्यों करना है? Because सेविंग आपकी बढ़ानी है. जितना आप सेविंग्स बढ़ाओगे, उतना ही आप उसका इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे. अदरवाइज you are just floating in the river, right? You are just going with the flow. So you have no control on what's happening. अब सेविंग बढ़ाने का दो ही तरीका है. इनकम इतनी है, उसको आप इतनी कर लो, तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ. इस पे भी हमने पहले बात करी है that anybody who is just starting off, I think me and Sandeep had a nice, I think we both chatted about this, कि यार skill पे काम करो, make yourself more valuable wherever you're working, right? Self-employed or in a corporation. Because the more you work on your own skill, that is also an investment. That is where your income kind of goes up. तो आपका saving automatically बढ़ेगा. ये assumption है कि saving automatically बढ़ेगा. क्यों ये assumption है? क्योंकि आपके खर्चे और जो आपके expenses हैं, they should be in your control. So you should not be driving the expenses, and the whims and fancies should not be driving you. It should be you who is deciding on the expenses. हमने I think credit card के judicious usage पे भी touch upon किया है. YOLO lifestyle के जो damaging areas हैं, उस पे भी हमने I think बात करी है. So net here, it's not very complex. Please sit down with a pen or paper or an Excel file. Try to be cognizant of where you're spending money. एक बार आप उसको रियलाइज कर लोगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड सर्टन पॉकेट्स जहाँ पे यू विल बी एबल टू डू सम मॉडरेशंस. देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि आप कंजूस बन जाओ या आप कहीं खर्चा मत करो. दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल. इट्स जस्ट अबाउट द मोर यू आर अवेयर. सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी है, ठीक है. एवरीथिंग इज ऑन सब्सक्रिप्शन. आपको पता भी नहीं चलेगा ये 600, 500, 300, 200, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये वो करके. In fact, Swiggy, Zomato भी subscription. So you have no idea how much all of that is adding up, right? Yeah. So कभी-कभी वो चीजें जब आप देखोगे अपने आँख के सामने, तो it will feel a little alarming. So it is better to get a control on that. And once you get the savings, फिर that's when you have some money, and then that's what you need to figure out कि अब इसका करना क्या है. How do you invest? So that's the next step in our, I think that's probably what we need to discuss next, right? Yes. Yeah. So अब आपने बहुत बढ़िया से बजट बनाया अपना. यू हैव इनकम, आपने अपने एक्सपेंसेस देखे, पता चला आपका सेविंग्स बहुत कम है. यू आर सीइंग इट एज अ वेरी माइजरली अमाउंट. आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही कम है, इससे क्या होगा. तो
पहली बात है, इनकम पे फोकस करिए, स्किल पे काम करिए, इनकम बढ़ाइए, ट्राई टू फोकस ऑन दैट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. I would say the most important part, rather than cursing yourself for the expenses and the obligations that you have. Don't do that. Don't make yourself miserable. Miserable करना ही है तो पढ़ाई करिए और कुछ सीखिए, maybe that will help you. सेविंग्स जो आपके पास आ जाता है, डोंट लुक एट इट कि यार 500 रुपये बच रहे हैं, 1000 रुपये बच रहे हैं, 2000 बच रहे हैं, 5000 बच रहे हैं, इससे क्या होगा. देर इज द मिरेकल कॉल्ड कंपाउंडिंग. Yes. इस पे हमने ब्रीफली, आई थिंक वी हैव टच्ड अपॉन इट. इट इज इंडीड अ मिरेकल. एनीबडी हु नोज एक्सेल, और इवन यू कैन डू इट इवन ऑन अ कैलकुलेटर. CAGR के बहुत सारे वेबसाइट्स में आप प्लग इन करके देख सकते हो. सबको ये पता होता है कि अगर मैं 20 साल का होम लोन लूंगा, और अगर मैं वो मान लो 50 लाख का मैंने होम लोन लिया है, जस्ट आर्बिट्री नंबर, 20 साल बाद 50 लाख तो मैंने वापस करा ही है, उससे ऊपर मैंने मे बी 60-65 lakhs और दे दिया, Yes. एंड होम लोन इज रनिंग एट 9%, समथिंग लाइक दैट. अब आप यही सोचो कि द अमाउंट ऑफ व्हाट डिड यू डिड ए रिड्यूसिंग EMI जिसमें आपने डबल दे दिया. कंपाउंडिंग में तो हॉकी स्टिक कर्व होता सीधा ऊपर. सो यू टेक एनी कैलकुलेटर और आप एक बार कंपाउंडिंग के नंबर को स्टडी कीजिए. आप 100 रुपए डालिए, आपको लग रहा है बहुत छोटा है, 1000 रुपए डालिए. Put a nominal return rate of 12%, which is considered to be extremely nominal when it comes to long-term investing. Like long-term matlab 8 years and above, especially in the market. We'll touch upon that a little bit. But अगर आप plus 8 years के लिए invest कर रहे हो, nominal returns are considered to be 12%. In fact, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करोगे तो 15% बोलेगा, वो बोलेगा 15 to 18%. But let's not go crazy. Let's say nominally 12%. आप उस कंपाउंडिंग को देखिए. आपने 1000 रुपए दिए, पहला ऑब्जर्व करिए कि कौन से साल में 1000 रुपया वापस उसने कमाया. सो व्हेन डिड 1000 बिकम 2000? सो आपको आएगा मे बी, आई डोंट नो, 6 years 5 years. उसके बाद देखिए कि जो पैसा है वो नेक्स्ट 1000 रुपीज कितने साल में कमा रहा है. सो व्हेन विल द 2000 बिकम 3000? एंड सडनली यू विल सी कि पहले इतना टाइम लग रहा था, फिर इतना टाइम लग रहा है, फिर इतना टाइम लग रहा है. देन यू विल रीच अ पॉइंट where the money is compounding. Every year probably it is gaining back 1000 rupees जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया था. अब आप इसको सीरीज में देखिए, राइट. सो यू आर नॉट पुटिंग 1000 एंड फॉरगेटिंग अबाउट इट. आप हर महीने कमाते हो, हर महीने आपकी बचत होती है, आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे, एंड ऑल ऑफ दैट एड्स अप, राइट. एंड दैट इज अ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. आप करके देखिए अपने एंड पे. बिलीव मी इट इज, एंड बिलीव संदीप ऑल्सो, हमने दोनों ने इस बारे में बात करी है. इट इज इंडीड मैजिकल. थोड़ा स्लो लगता है आपको स्टार्टिंग में, बट आप पेशेंटली टिके रहोगे तो इट्स जस्ट वंडरफुल. यू हैव टू सी इट हैपन. दैट इज जस्ट ए एंटाइजिंग थिंग टू नज यू टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बट हाउ डू यू गो अबाउट इट? तो आपने सेविंग्स करी, हमने पहले बात करी थी इमरजेंसी फंड की. यू नीड टू एटलीस्ट हैव, आई वुड से 2 months 3 months of your salary as an emergency fund in a liquid format. Liquid format का मतलब है जो आप immediately withdraw कर सकते हो. Like it should be in a bank FD जो आप immediately तोड़ सकते हो. You can even put it in your savings account. एक अलग account है आपके पास, उसमें भी रख सकते हो. या आप एक डेप्ट म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो, इवन दो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी लिक्विड, राइट. मतलब 2 दिन लग जाएंगे, T+2 सेटलमेंट होती है उसकी. बट कहने का मतलब ये है कि डोंट गो क्रेजी अबाउट कि ये कितने पैसे कमा रहा है, 12% तेरे. दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज कि आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा है. दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. यू स्टार्ट स्लो, राइट. आप हो सकता है, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल. अगर कोई सुन रहा है एंड ही इज थिंकिंग कि मेरी सैलरी 50,000 है और मेरे पैसे बच रहे हैं 5,000 रुपीज. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो आप कैलकुलेट करोगे, अरे 50,000 जमा करने के लिए तो मुझे 10 महीने लग जाएंगे. Yes. आप मुझे बोल रहे हो कि 3 महीना जमा करो, तो ये तो मैं 3 साल में तो सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाऊंगा. ठीक है. Yeah. तो यू डोंट नीड टू थिंक एग्जैक्टली लाइक दैट.
आप इसको स्टेजेस में करिए। आप यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। हमने पहले भी इस बारे में बात करी है। बजट बनाओगे, उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स सेट नहीं करोगे तो आप कोई चीज कर नहीं पाओगे। आपके पास एक नोटपैड में लिखा होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि यार मुझे 3 महीने का पगार लिक्विड कहीं रखना चाहिए। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। अब हो सकता है कि आप 5,000 ना करो, आप 2-3 इनिशियली 6 महीने के लिए 5,000 कर दो। यू हैव समथिंग देयर, आपको थोड़ी सेफ्टी आ गई। आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। 5,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड में जा रहे थे, आप उसको 3,000 2,000 कर दीजिए। नाउ स्टार्ट पुटिंग 3,000 इनटू द इमरजेंसी फंड एवरी मंथ एंड 2,000 रुपीज को आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। सो द आइडिया इज टू फिल दैट बास्केट। द आइडिया इज टू फिल दैट बास्केट क्विकली ऑल्सो। तो कभी कभी अब एक साल लग रहा है, क्या पता अगले साल आपकी 30% हाइक हो जाए यार। यू माइट यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर अपस्किलिंग योर सेल्फ, you deserve a raise. क्या पता निर्मला सीतारमन might bless us next year as well. Yes. 20 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं। Anything can happen, right? So think, go with a positive attitude and don't get disheartened by these things. आप ऐसा मत सोचो कि 3 महीना करने के लिए, इनफैक्ट मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, anybody who is 30-35 plus, recommendations is to have at least a year worth of money somewhere, hold up somewhere pretty liquid, जो आप immediately या T+1 T+2 में आप निकाल सकते हो। Typically that is the norm, right? आपको ऐसा करना चाहिए because life is very uncertain. So the idea is liquid money, okay? Liquid में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? You can obviously stick the money in a savings account. Savings के अंदर sweeping FDs होती है, मतलब आपको जो पैसा डालना है और वो अपने आप FD के रेट में चला जाता है। नॉट एग्जैक्टली FD रेट्स, बट थोड़ा सा उसमें यू गेट अ स्मॉल कट, हेयर कट ऑन दैट, बट फेयरली गुड। आप हार्डकोर FD कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुट एवरी मंथ, लेट्स से गोइंग विद द सेम एग्जांपल, 5,000 की FD कर, 5 साल की RD भी कर सकते हो आप, जो 1 साल में पकेगा। दैट लमसम मनी विल कम, उसको आप बाद में वापस से FD कर देना। डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल सकते हो। सो देर आर सम म्यूचुअल फंड्स, सो डोंट गेट स्केर्ड, दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, और आप इसकी हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, उसका ग्राफ दिखेगा आपको, सीधा ऊपर ही जा रहा है वो। तो इसका मतलब नहीं कि आप मतलब मल्टी मिलियनर हो जाओगे। इट्स जस्ट दैट वो 6% का रिटर्न देगा ऑन ए एनुअल बेसिस, बट द मनी दैट यू पुट इन विल नेवर गो डाउन। मतलब टिपिकली हिस्टोरिकली इट हैज नॉट गॉन डाउन। तो वो आपको एक FD का आपको इंटरेस्ट देता रहेगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी ए बेटर वे ऑफ पार्किंग योर इमरजेंसी फंड। रीजन बहुत सिंपल है कि जब आप FD करते हो, RD करते हो, या इवन आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो, द इंटरेस्ट हैज टू बी क्रेडिटेड टू यू। RBI कहता है कि आपको इंटरेस्ट जमा कर देना है सब्सक्राइबर के खाते में, और जैसी इंटरेस्ट जमा होती है वो आपका इनकम बन जाता है, एंड यू आर लाइबल टू पे टैक्स टू इट। सो एनीबडी हु इज लेस देन 12 lakhs, आप तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। अदर इनकम सोर्सेस में आई थिंक यू मे एस्केप इट, बट या दैट इज अ रियलिटी, राइट? सो अगर मान लो आपकी किटी पड़ी है, इफ यू हैव अबाउट 2-3 लाख रुपीज सिटिंग इन FD, और हर साल आपको उसका इंटरेस्ट आएगा, एंड यू हैव टू पे, कंसिडर दैट एज एन इनकम एंड पे इनकम टैक्स ऑन इट। द बेनिफिट ऑफ द वर्सेस दैट विद अ डेप्ट म्यूचुअल फंड इज, आपने पैसे वहां क्यों लगाए? इमरजेंसी के लिए। क्या आपको हर साल इमरजेंसी आ रही है? नहीं। तो मैं फिर पैसे विड्रॉ ही तब करूँ ना जब मुझे रिक्वायरमेंट हो। तो म्यूचुअल फंड, जब आप डेप्ट म्यूचुअल फंड लेते हो, उसका एडवांटेज ये है कि द टैक्सेशन कम्स एंड हिट्स यू ओनली व्हेन यू आर विड्रॉइंग मनी। टिल द टाइम इट इज सिटिंग देयर एंड कंपाउंडिंग, यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। मतलब आपने खरीद लिया है, आई मीन यू हैव गॉट द यूनिट्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड हाउस ऑन द डेप्ट म्यूचुअल फंड। जब तक आप उसको रिडेम्पशन के लिए नहीं डालते और आपके खाते में पैसा नहीं आता, तब तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो विच इज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग, क्योंकि एज आई मेंशन, इमरजेंसी फंड है वो एक थोड़ा सा न्यूसेंस बन जाता है कि अरे इसको हर साल कुछ करना पड़ेगा एंड ऑल दैट।
एंड मेरी पर्सनल एक कमेंट ये रहेगा कि बेटर है कि वो पैसा खाते में आए ना, वो कहीं पड़ा रहे दूर। क्योंकि वो बार बार अगर हर साल आएगा, टिंग करके एक मैसेज आएगा कि भाई पैसे क्रेडिट हो गए, तो फिर वो मन में लड्डू फूटते हैं, फिर कुछ आइडियाज आ जाते हैं, तो बेटर है कि ना ही है। So that's the whole idea of setting up emergency funds. Yeah. But that's not going to cut it, right? So you need to go into investments. Now, where should we start, Sandeep? Investment में क्या बात करें? Should we talk about the options that we have available a little bit, or how do you want to do it? Yeah, probably we can talk about what are all the instruments available. हमारे पास क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे भी आपने बताया कि we have the debt mutual funds as well, we have the FDs, we have the RDs, we have sweep in facilities as well. So FDs, yeah. these are Yeah. all the debt instruments. So Yes. maybe let's talk about on the equity front as well, क्योंकि Yeah. पैसा Yes. तो वहीं से बनेगा. True. True. So those who are totally uninitiated, इक्विटी का मतलब है आप जो शेयर्स खरीदते हो, आपने बहुत बार सुना होगा अदानी के शेयर, रिलायंस के शेयर, जोमेटो के शेयर, ट्रेंट के शेयर, हर तरीके के शेयर. तो shares are nothing but fragmented ownership in the enterprise which is listed in a share market. So let's say Sandeep and company decides to list and they say कि यार I want to raise capital, तो वो अपनी कंपनी के छोटे 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 फ्रैगमेंट्स करेंगे in terms of ownership, and those ownership fragments will trade on the share market, and then the market will determine the price. There is an intrinsic value of the share, but obviously आपको सुन, I don't know if those who don't know, शेयर के जो फेस वैल्यू होती है, जैसे आपके 10 रुपए का नोट है, उस पर लिखा है 10, तो शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, हो सकता है वो 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, कभी कभी 10 रुपए की स्प्लिट होते होते फेस वैल्यू 1 रुपए की बन जाती है. इतनी बार वो स्प्लिट हो गया होता है. लेकिन जब आप मार्केट में, शेयर मार्केट में खरीदने जाएंगे, वही शेयर 2000 का 3000 का मिलेगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज. शेयर्स आर ओनरशिप अपॉर्चुनिटीज ऑन ए कंपनी. दो तरीके से आप उसमें पैसा बनाएंगे. द डिमांड ऑफ दैट शेयर गोज अप, विच इज अ फंक्शन ऑफ लार्जली वो कंपनी कैसा कर रही है, वो इंडस्ट्री कैसा कर रही है. डज द मार्केट बिलीव दैट the potential of the company to grow and compound its wealth is high, तो लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार, रेडी हो जाते हैं. सो इफ यू हैव bought some shares and others also get the same idea, so suddenly the demand of that shares goes up. Like any free market economy, right? So the demand goes up, the price goes up, right? तो वैसे ही आपका प्राइस बढ़ जाएगा. उल्टा भी होता है. सडनली आपको लगा कि अरे हिंडरबर्ग ने कुछ बोल दिया अदानी के बारे में, एवरीबडी थिंक्स दैट ओ माय गॉड, अभी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एंड एवरीबडी वांट्स टू सेल द शेयर्स and nobody wants to buy it. तो क्या होगा? When the supply goes up and the demand goes down, the price will go down. तो उस केस में शेयर के प्राइस गिर जाएंगे. Why explain all this? Because we need to understand what is mutual fund also. So shares roughly is about, you can own a piece of the company. It is just giving you a piece of ownership and piece of this thing. और कंपनीज, अगर आपको कंपनीज के पास बहुत पैसा जमा हो गया और उनको लगता है कि नहीं यार बहुत पैसा है, अभी मैं ओनर को पैसा देना चाहता हूँ, तो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे. वो डिविडेंड्स बोलते हैं उसको. सो आप मानिए कि आपका चाय का गल्ला है, आपने शाम तक 10,000 रुपये बना लिए. आप तो ओनर ही हो, तो 10,000 रुपये आप जेब में डाल के चले जाओगे कि हाँ यार तो मेरे पैसे हैं. लेकिन अगर आपका पार्टनर है तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे ना, 5,000 वो ले जाएगा, 5,000 मैं ले जाऊंगा. अब आप इमेजिन करो कि आपके पास लाखों करोड़ों पार्टनर है, तो everybody will get a share fragment of that money that you have made. It does not happen all the time. It happens only when the board decides कि आपको dividend देना है. So all of that is there. So जब आप shares खरीदते हो, the way you make money is you can get dividend yield. मतलब the company has made a lot of profit and the board decides कि let us distribute this money. तो आपको dividends उसके मिलेंगे. The other way when you make money is when you buy cheap and you are able to sell
हाई, ठीक है। वो मोबाइल में 15% बढ़ गया बोल के आपके जेब में नहीं आएगा. You'll have to execute a sale to realize that money. So please, those who are newbies, वो क्या बोलते हैं उसको, अनरियलाइज प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट का फर्क समझिए. वो दिखने में हरा हरा रहता है, बट टिपिकली यू विल नॉट सेल एट दैट टाइम. सो शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे. सी शेयर्स आर, when we look at shares as an investment instrument, it's a very high skilled activity. आप किसी के कहने पे कुछ खरीद रहे हो, या कुछ आपने कुछ खरीद लिया, कुछ बेच दिया, आपने कुछ पैसे बना लिए. Probably it has become a hobby for you. Probably you are just मतलब not to kind of diss people, but probably time pass कर रहे हो आप. You might have made serious money on it, but if you are not fully aware of how things work, especially those who do risky things like options and futures and small cap illiquid shares में आप पैसा, किसी ने बोल दिया कि ये तो पता नहीं कोई कंपनी बैठी है अहमदाबाद में तो गजब कर रही है, वो खरीद लो, तो सिर्फ 2 रुपए का शेयर है. मतलब 2 रुपए का शेयर है, 2,000 रुपए डालो, 1,000 शेयर मिल जाएंगे आपको. एंड यू नो, बूम बूम एकदम. तो ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये सब मस्ती मजाक है. नथिंग सीरियस. यू विल नॉट बी एबल टू कंपाउंड वेल्थ ऑन दिस. टिपिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आपको एक किकबैक आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि यार राकेश झुंझुनवाला ने तो ऐसे पैसे बनाए थे. यू नो, all the bigwigs of Dalal Street have made money with buying shares. बट आप लोग को दिखता नहीं, उनका जिगरा आपको नहीं दिखता है. The amount of courage that they have, the amount of visibility that they have, the kind of positions that they take. वो 100 शेयर नहीं खरीदते, वो परसेंटेजेस में कंपनी खरीदते हैं. कि मैंने टाइटन के 2% शेयर खरीद लिए. You have no idea the amount of money that is required to buy that amount of float in a company, right? It's insanely difficult. और उसके बाद उसके अप्स एंड डाउन्स और सब पूरी हिस्ट्री में वो बैठे रहते हैं वहां पे. दे कैन अफोर्ड टू डू दैट. फॉर यू इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया. बट जैसा संदीप ने कहा, ये पैसे तो इक्विटी में ही बनेंगे, तो आप करें क्या? तो आम आदमी के लिए, मैंगो पीपल के लिए जो ब्लेसिंग है वो है म्यूचुअल फंड्स. नाउ व्हाट द हेल इज म्यूचुअल फंड? सो शेयर्स हमने समझ लिया, आप समझ लिया, आपने कटोरी एक टोकरी ली और आप चले गए शेयर बाजार. ठीक है, आपने 5 शेयर रिलायंस के खरीद लिए, 10 शेयर अदानी के खरीद लिए, एक आपने एमआरएफ का भी शेयर खरीद ला. इनसाइड जोक है, जिसको पता है ही विल अंडरस्टैंड. 1 शेयर आपने एमआरएफ का खरीद लिया और इस तरीके से आपने कुछ शेयर्स खरीद लिए. जब आप टोकरी लेके बाहर आ रहे हो, आपको कोई पूछता है कि यार आधी टोकरी का सामान मुझे दे दे, क्या रेट लगेगा? इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल एक्सरसाइज. यू हैव बॉट थिंग्स एट डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट क्वांटिटीज. तो ऑब्वियसली अगर आपको उसको 2 में स्प्लिट करना है तो यू विल हैव टू ऐड एवरीथिंग अप डिवाइडेड बाय 2. लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते. सो बेसिकली इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि एक कंपनी के टुकड़े हो गए. एक कंपनी ने अपने आप को, अपनी ओनरशिप को टुकड़े टुकड़े करे, छोटे छोटे टुकड़े करे और इंडिविजुअल शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए. अब एक पर्सन ने, फंड हाउस ने, लेट्स से पर्सन फॉर सिंप्लिसिटी, बहुत सारे ऐसे कंपनीज के शेयर खरीद लिए, तो उसकी एक वर्थ है, राइट? सो व्हेनेवर लेट्स से आपने, आपके बास्केट में अदानी के शेयर से अदानी का शेयर ऊपर चला गया, तो आपके बास्केट की वर्थ चली गई ऊपर. अगर आपके एमआरएफ के शेयर गिर गए तो आपके एमआरएफ, आपके बास्केट की वर्थ थोड़ी गिर गई. बट अगर मान लो, इमेजिन करो कि एमआरएफ के शेयर 0 हो गए, तो क्या आपकी बास्केट की वैल्यू 0 हुई? प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बास्केट के अंदर सिर्फ एमआरएफ का शेयर नहीं है, और भी कंपनीज के शेयर हैं. तो एमआरएफ डूब गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पूरी बास्केट खराब हो गई. आई हैव अदर कंपनीज ऑल्सो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड, बिकॉज यू आर नॉट ओनिंग वन कंपनी, you are owning a basket of companies, or rather in your basket you have ownership of multiple companies in different proportion. Largely that is mutual fund.
And Anil, you just taken an example of MRF as an example. MRF डूब नहीं रहा है. So Yeah, don't yeah, yeah. Oh my God, yes. worry. Oh my God, yes. These are just examples. These are just fun Hypothetical banter. hypothetical cases. अगर गलती से हम किसी फंड हाउस का, शेयर का, किसी भी चीज का नाम ले लें तो इट इज प्योरली जस्ट फॉर मेकिंग थिंग्स सिंपलर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. ये ना हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन है, ना मतलब वी आर मेकिंग एनी कमेंट ऑन इट. दिस नॉट a buy, sell or hold or any recommendation Yes, whatsoever. that is important. सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, शेयर और नामों पे ड्रैग मत दीजिए. So essentially that's what mutual fund is, right? It's a basket of multiple companies rolled into one. तो आप सोचोगे कि यार फिर तो एक बास्केट बहुत महंगा पड़ेगा. अगर उसमें एक एमआरएफ भी है, अदानी भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी, तो बास्केट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव. नहीं, अगेन इसको तोड़ते हैं. सो जो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है, राइट? एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने एक इंडेक्स फंड निकाला. विल कम टू दीज थिंग्स लेटर, बट लेट्स से उन्होंने एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, विच इज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. और उन्होंने बोला कि हम जी निफ्टी के जो सबसे टॉप 50 कंपनीज हैं, हम उनके शेयर्स खरीदेंगे. ये उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड के डॉसियर में लिखा हुआ है कि भाई हम ऐसा करेंगे, ठीक है. अब दे आर नॉट गोइंग टू बाई फर्स्ट, ठीक है. तो मान लो जैसे मैं हूं, संदीप है, हम दोनों को हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, एसबीआई, अगेन दीज आर नॉट, प्लीज दीज आर नॉट रिकमेंडेशन, बट लेट्स से एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है, ग्रेट. निफ्टी 50 का उन्होंने इंडेक्स फंड निकाला है, ओके ग्रेट. चलो मैं इसमें एसआईपी शुरू कर देता हूँ, या चलो मैं इसमें लमसम खरीद लेता हूँ. ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे. तो यू हैव नाउ सब्सक्राइब टू एसबीआई, राइट? नाउ many such people are going to subscribe. ठीक है, एक रेप्यूटेड कंपनी के रेप्यूटेड फंड आपका एनएफओ हो रहा है, मतलब न्यू फंड ऑफरिंग, एनएफओ. मतलब जब एक नया फंड आता है मार्केट में, उसको एनएफओ कहते हैं. सो जरूरी नहीं आपको एनएफओ में खरीदना है. यू कैन बाय एनी म्यूचुअल फंड एट एनी पॉइंट, एनी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टली फ्रॉम द फंड हाउस. एनएफओ का एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट म्यूचुअल फंड इज, राइट? अब मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, लेट्स से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, 1 करोड़ नहीं होता, बट लेट्स से एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ हो गया. अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा, और मैंने तो बोला था कि ये फंड विल बाय द टॉप 50 कंपनीज, राइट? तो मैं सारे कंपनीज के शेयर खरीद लूंगा जब तक मेरे ये पैसे खत्म नहीं हो जाते, ठीक है. अब मैंने शेयर खरीद लिया. अब मैंने मतलब एसबीआई ने, सो एसबीआई ने खरीद के अपने पास रख लिए, राइट? और जिन जिन ने मुझे पैसे दिए उनको यूनिट असाइन कर दिया. तो यू विल गेट, म्यूचुअल फंड में आपको शेयर्स नहीं मिलते, आपको यूनिट्स मिलते हैं. टिपिकली आई थिंक 3 डेसिमल पॉइंट्स तक आपका यूनिट जाएगा. सो 1.120, 1.121, इस तरीके से आपको यूनिट्स मिलते हैं. What are these? These are fragments of ownership. Again, subscription, not ownership, or subscription to this fund. अब सारा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली एसबीआई फंड हाउस हैज बॉट ऑल दीज शेयर्स, तो वो उनके सबके शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी. तो रोज 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, whenever the fund house releases their new NAVs, which is the net asset value, वो आपको बताएंगे कि अच्छा आज इस यूनिट का रेट क्या है. तो अगर शेयर बाजार ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, सारे शेयर्स ऊपर चले गए, मतलब ऊपर मतलब प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो मैंने जो एसबीआई ने जो शेयर्स खरीदे उनकी वर्थ ऊपर चली गई. सो ऑब्वियसली आप जो यूनिट होल्ड कर रहे हो उसकी वैल्यू भी ऊपर चली गई. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट, योर सक्सेस इज नॉट कनेक्टेड टू ओनली वन शेयर्स, but your success is connected to a basket of shares. The shares are held by the fund house, जो आपको म्यूचुअल फंड इशू करते हैं, और आप उन्हीं को पैसा देते हैं और उन्हीं से पैसा लेते हैं. यू डोंट हैव टू गो टू द शेयर मार्केट. यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब. दे विल गिव यू यूनिट्स. देन यू नीड टू रिडीम योर यूनिट्स by
रिडीमिंग और अदर सरेंडरिंग योर यूनिट्स, और आपको उस एनएवी, उस दिन का जो एनएवी होगा सेटलमेंट के टाइम पे, आप जितने यूनिट सरेंडर करोगे उस हिसाब से आपको उसका पैसा मिल जाएगा। लार्जली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, है ना, सबके फंड, म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअली बोलते हैं ना, सब लोग मिलके जो पैसा इकट्ठा करते हैं और वो जाके इन्वेस्ट होता है और उसको सबको डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलती है। So that's anything to add further, Sandeep, if I'm missing anything, I and think at least you're going in the explaining right the way. mutual fund Yeah, concept. yeah. Yes. Yep. Okay. So what are the types of mutual fund? अभी म्यूचुअल फंड का लार्जली हम कॉन्सेप्ट तो समझ गए, तो टाइप नाउ इट इज वेरी इजी, राइट? सो दाल कौन सी बनी है आज, राइट? इज द सेम थिंग, राइट? बनी दाल ही है, अब उसमें अरहर पड़ा है कि मसूर पड़ा है कि क्या पड़ा है, उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो गया. So there are, anybody who is new will get overwhelmed by the sheer number of mutual funds that are there. Largely, let's break it down into, just for, देखिए सारा कुछ तो हम नहीं cover कर पाएंगे, but I mean for the benefit of the listeners, largely आप उसको ऐसा समझो that the classification is, you have a equity mutual fund. Equity क्या है? Shares है, जो हमने पहले ही बात कर ली. So म्यूचुअल फंड जो शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, एक इसको ये क्लास मान लो आप. दूसरा हमने बात करी इक्विटी म्यूचुअल फंड जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, मतलब जो बॉन्ड्स खरीदते हैं, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं. यू नो देयर आर मेनी मनी मार्केट इज एंटायरली डिफरेंट यूनिवर्स ऑल टुगेदर. जैसे पूरा शेयर बाजार है वैसा पूरा मनी मार्केट है. तो एंड आई थिंक इट्स प्रॉब्ली multi-fold bigger than the share market, if I understand correctly. तो वो उनके खरीदते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज को इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं नेक्स्ट 5 years, तो वो लोग कुछ एक बॉन्ड निकाल देंगे, वो बॉन्ड का कुछ रिटर्न होगा. नाउ दे वांट पीपल टू बाय द बॉन्ड, राइट? So there will be some mutual funds who will buy these kind of government bonds. अब उसमें से गवर्नमेंट बॉन्ड में से जो पैसा मिलेगा, क्योंकि इट्स अ म्यूचुअल फंड, तो जो लोगों ने इनका म्यूचुअल फंड खरीदा होगा उनको उसका बेनिफिट मिलेगा. सो जैसे जैसे बॉन्ड के पैसे आते रहेंगे, इनकी फंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड यू विल आल्सो मेक रिटर्न आउट ऑफ इट. सो अल्टीमेटली द आइडिया इज व्हाट इज इनसाइड द म्यूचुअल फंड. डेप्थ है, इक्विटी है, उसके बाद यू हैव वेरिएशंस व्हिच आर सराउंडिंग दीज थिंग्स, राइट? तो यू मे हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी, बैलेंस फंड के नाम से, और अदर रिटायरमेंट, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं. आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि कोई म्यूचुअल फंड के बारे में कि यार इसके अंदर क्या है, आप सिंपली उस फंड को गूगल करिए. यू विल हैव मेनी साइट्स हु आर होस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और वहां पे क्लियरली लिखा होगा कि इसका क्या इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है. ये इक्विटी है, डेप्ट है, इक्विटी एंड डेप्ट है, इक्विटी डेप्ट गोल्ड भी है. तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो इसमें डाल देंगे वो उसका फंड बन जाएगा. सो हमने ब्रॉडली ये समझ लिया. अब इक्विटी के अंदर क्लासिफिकेशंस भी है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है कि आप शेयर्स खरीद रहे हो. अब शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स अपने आप में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्लासिफाइड है. सो यू हैव दिस लार्ज कैप्स जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज, उसके बाद उसके बीच में आते हैं मिड कैप्स which are the next in line, right? Now the counts, you can slice it any way. You can say कि top 50 companies India के, top 150 companies India के, but largely there is a threshold of a market capitalization. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि 50% डिस्टिंक्शन, इस तरीके से जो हम क्लासेस सेट करते हैं, जब आपको परसेंटेजेस और स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, कुछ इसी तरीके से मान लो आप कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से ऊपर है तो ये लार्ज कैप माना जाएगा, इसके बीच में है तो मिड कैप माना जाएगा, इससे नीचे है तो स्मॉल कैप माना जाएगा, उसके नीचे फिर माइक्रो कैप्स भी आते हैं विच इज मच मोर स्मॉलर कंपनीज. एसेंशियली व्हाट इज द कंपनी वर्थ, अगर वो बहुत महंगी कंपनी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो लार्ज कैप में आ जाएगा. अगेन इक्विटी फंड के अंदर अगर कोई फंड बोले कि मैं सिर्फ लार्ज कैप खरीदूंगा तो वो बन जाएगा लार्ज कैप इक्विटी फंड.
अगर कोई सिर्फ मिड कैप की कंपनी खरीदेगा तो बन जाएगा मिड कैप इक्विटी फंड। अगर कोई बोलेगा कि मैं स्मॉल कैप कंपनी ही खरीदूंगा तो बन जाएगा स्मॉल कैप इक्विटी फंड। सो बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करना। इसमें फिर कॉम्बिनेशन आते हैं फ्लेक्सी फंड्स, मल्टी कैप फंड्स। फ्लेक्सी फंड, वो नाम सुन के आपको पता चल रहा है द फंड हाउस विल डिसाइड और द फंड मैनेजर विल डिसाइड कि मुझे मिड कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है कि लार्ज कैप लेना है। सो वो अपनी इंटेलिजेंस लगाएगा कि यार ये कहाँ पे मैं, मतलब मुझे लग रहा है कि पैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर गेटिंग बीटन लाइक एनीथिंग। तो जो फ्लेक्सी कैप वाले होंगे दे विल बी सेइंग कि नहीं यार लेट्स गो एंड बाय लार्ज कैप, शायद वहां स्टेबिलिटी मिलेगी, तो वो अपने आप को फ्लेक्सिबली मूव करेंगे। मल्टी कैप इज ऑल्सो सिमिलर। 30%, 30%, 30% होगा या 30-30-40 होगा कि भाई आपको, या 25-25-25-25 होगा, जहां पे वो बोलेंगे कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और जो रिमेनिंग 25% है वो आपकी इच्छा है, आप जहां डालना चाहो, तो उसको मल्टी कैप बोलते हैं। सो दिस इज हाउ द इक्विटी कैप वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट। अब लार्ज कैप में क्या क्या आता है, ऑब्वियसली उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भी कंपनी जो बड़ी हो गई वो लार्ज कैप में आ गया। नहीं 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 नहीं, देखो 12.5 लाख 12 लाख 75 लाख हजार का आपको, मतलब ऐसी लॉटरी लगी है, तो लोग तो अब जो खर्चा करेंगे, तो भैया कंजम्पशन का थीम है। हमने इसमें बात भी करी थी कि सरकार, आई थिंक वी कॉल्ड इट अर्ली, संदीप, आई थिंक वी कैन गिव इट टू आवर क्रेडिट। वी ऑलरेडी गिव ए, मतलब खैर तुक्का है या जो है, जो हमें लगा एटलीस्ट, जो थीम बन रही थी कि कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है बॉस, दे वांट यू टू स्पेंड मनी, राइट। तो एनीबडी विल थिंक यार कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है यार, ट्रेंड खरीदते हैं, डीमार्ट खरीदते हैं, जोमेटो खरीदते हैं, ब्लिंकिट अगर लिस्ट हो जाए, दिस तरीके से आप सोचोगे कंजम्पशन से क्या बनता है, तो मैं सिर्फ वो कंपनीज खरीदना चाहता हूं जिसमें इसको बेनिफिट होगा। दूसरा थीम है कि यार गवर्नमेंट लुक्स वेरी सीरियस ऑन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ये लोग बहुत इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब एनी कंपनी हु इज डूइंग एनी बिजनेस अराउंड रेलवेज विल मेक मनी। तो ट्रांसपोर्ट की एक थीम बन गई। तो ये कोई नॉवेल आइडिया नहीं है मेरा, ये बहुत ही बेसिक चीज है, और इसी के ऊपर भी म्यूचुअल फंड्स बनते हैं जिसको सेक्टोरल फंड्स बोलते हैं। सेक्टोरल फंड्स में यही होता है कि वो म्यूचुअल फंड एक फंड निकालती है, वो बोलती है कि आई एम ए फार्मा फंड। फार्मा फंड मतलब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मा रिलेटेड कंपनीज को खरीदूंगा, ठीक है। तो आप जब मुझे सब्सक्राइब करोगे, आप मुझे पैसा दोगे, तो मैं उन्हीं शेयर्स को खरीदूंगा। सेक्टोरल फंड्स आर ग्रेट फॉर क्रिएटिंग अल्फा, बट देन इट इज एज डिफिकल्ट एज बाइंग शेयर्स, आई मस्ट से। जैसे अगर आपको कोई बोल दे कि फार्मा फंड चलेगा, आपको फुल कन्विक्शन है कि नेक्स्ट 5 years फार्मास्यूटिकल तो बढ़िया चलेगा, तो आपको पता ही है मार्केट में कौन कौन से फार्मास्यूटिकल शेयर्स हैं, आप जाके खरीद लीजिए। आप म्यूचुअल फंड क्यों ले रहे हो? बट लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट। आप उसको 5,000 का खरीद सकते हो, 1,000 का खरीद सकते हो, बट द कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल देयर, राइट। आप यू हैव टू स्टिल कॉल द शॉट्स। मैं अभी से ही कह देता हूं कि सेक्टोरल फंड्स आर टू बी अवॉइडेड फॉर एनीबडी हु इज स्टार्टिंग अर्ली इन दिस इन्वेस्टमेंट। प्लीज, सेक्टोरल फंड्स आर डिफिकल्ट टू पिक वेल, ठीक है। पैसा भी बनता है, नो डाउट अबाउट इट। वी कैन नॉट से कि सेक्टोरल फंड्स आर इलॉजिकल। अगर इलॉजिकल होते तो मार्केट में बिकते ही नहीं, बहुत लॉजिकल है, बट इट इज नॉट फॉर द अर्ली इन्वेस्टर्स। अभी जैसे आप शुरू कर रहे हो, आप डोंट गो फॉर सेक्टोरल फंड्स। लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट। सो हमने काफी बात कर ली। हमने इंडेक्स फंड पे बात नहीं करी, लेट्स टच दैट ऑल्सो। आप सुनोगे इंडेक्स फंड। ETFs, maybe both of them. हाँ, ETFs आर फेयरली सिमिलर, बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स फंड्स। बहुत सारे ETFs इंडेक्स की तरह ही बिहेव करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि आज बाजार क्या कर रहा है, मार्केट, शेयर मार्केट कैसा है, तो आप मुझे एक शेयर का प्राइस नहीं बताओगे, आप बोलोगे अच्छा निफ्टी ये कर रहा है, सेंसेक्स ये कर रहा है, बैंक निफ्टी ये कर रहा है। सो यू विल ड्रॉप दीज काइंड ऑफ जार्गन्स, राइट।
सो एसेंशियली मार्केट के अंदर तो इतने सारे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे बताओगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है? सो ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स बनाते हैं. इंडेक्स मतलब द वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर मार्केट. सो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, राइट? सो निफ्टी 50 इंडेक्स क्या करेगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी या एनएसई पे पहले टॉप 50 कंपनीज जो होंगे मार्केट कैप वाले, उन सारे कंपनीज को एक स्पेसिफिक रेशियो में लेके इट विल ट्राई टू कन्वर्ट द एंटायर वैल्यू इनटू अ सिंगल नंबर. तो आप एक नंबर देख के बता सकते हो कि यार जनरली ये 50 कंपनियां कैसे कर रही है, इवन दो इट इज नॉट एन एक्यूरेट इंडिकेटर. एज एक्सप्लेन्ड, अगर मान लो निफ्टी 50 में 25 कंपनियां ऊपर जा रही हैं और 25 कंपनियां नीचे जा रही है, तो इफ यू लुक एट अ स्पेसिफिक शेयर, it might be performing according to what I just said. Either it will be in green or it will be in red. But because they both are pulling in opposite direction, हो सकता है कि जो Nifty 50 index है, it is staying at the same place, right? It is not moving at all, or rather it's moving very very little. तो इंडेक्स फंड क्या करता है? इंडेक्स टिपिकली बेंचमार्क होते हैं. जैसे अगर आप अगर स्प्रिंटर हो तो आपका बेंचमार्क होगा कि ओलंपिक्स में भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका है. अगर आप 1980s में भाग रहे थे, स्प्रिंट कर रहे थे, तो 1980s में वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका था, ही इज द बेंचमार्क, ही और शी, राइट? वो जितने में भागे थे आप उनसे कंपेयर किए जाओगे. अभी हम 2025 में बैठे हैं, तो अभी जिसका हाई शॉर्टेस्ट टाइम है फॉर 100 मीटर स्प्रिंट, आपकी कंपैरिजन उससे होगी. सो जब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स की कंपैरिजन या परफॉर्मेंस की कंपैरिजन इंडेक्सेस से होती है. तो टिपिकली ये बोला जाता है कि आपने इंडेक्स को बीट किया कि आप इंडेक्स से नीचे रहे. मतलब शेयर बाजार की एक चाल है, जैसे जैसे टाइम जाता है मार्केट एक चाल पकड़ता है, या तो हल्का सा ऊपर जा रहा होता है, साइडवेज जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है. अब आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा, आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे? हाउ डू यू नो इफ इट इज डूइंग गुड और बैड? So you have to compare it with something. So you will compare it with an index. कि यार जनरली मार्केट ने क्या किया. अब वो जो जनरली वर्ड है उसको डिराइव करने के लिए आपको एक सारे इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके एक सिंगल टिकर पे लाना पड़ेगा, जिसको आप ट्रैक करोगे, विच इज द निफ्टी 50 इंडेक्स. सो ऑन सो फोर्थ, राइट? आपका बैंक निफ्टी हो जाएगा, स्मॉल कैप के लिए आपके पास एक इंडेक्स हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट. अब कुछ म्यूचुअल फंड वालों ने दिमाग लगाया, कुछ पुरानी बात है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, कि यार हम इंडेक्स को बीट करने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हमको तो पता है ना इंडेक्स कैसे कंप्यूट होता है. सो वी नो हाउ द इंडेक्स इज बिल्ट. मतलब इंडेक्स में कितने कंपनी के कितने शेयर्स होते हैं, हाउ इट इज कैलकुलेटेड. एक काम करते हैं ना, जैसे इंडेक्स का कंपोजिशन है वैसे ही शेयर्स खरीद लेते हैं. तो जैसे जैसे इंडेक्स चलेगी, हमारा म्यूचुअल फंड भी वैसे ही करेगा. So it was a way to make sure that your tracking error, sorry, your performance is not getting lagged from the index. But बाद में लोगों को realize हुआ कि this is anyways a wonderful idea, क्योंकि हमें दिमाग नहीं लगाना, हम इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को खरीदेंगे, फुल स्टॉप. दैट इज निफ्टी 50. तो अगर कोई म्यूचुअल फंड बोलता है कि नहीं यार हम ना ज्यादा R&D नहीं करना चाहते, चुप करके हम टॉप 50 कंपनीज खरीदेंगे. If you believe in the India story, if you believe that the India is rising, ये सारे शेयर्स ऊपर जाएंगे, इंडेक्स ऊपर जाएगा, आप भी पैसा बनाओगे. सिंपल. सो जब आप इंडेक्स फंड खरीदते हो तो पैसा उसी प्रपोर्शन में, जिस तरीके से एक इंडेक्स कंप्यूट होता है वैसे ही शेयर्स में लगता है. जैसे जैसे इंडेक्स चलेगा वैसे वैसे आप भी चलोगे. वेरी सिंपली पुट, दैट्स व्हाट इट इज. ETFs आर ऑल्सो सिमिलर, जो संदीप कह रहे थे. ETFs is exchange traded fund. The only difference is कि आपको इसको खरीदने और बेचने के लिए आपको शेयर बाजार में जाना पड़ेगा. आप यू आर नॉट गोइंग टू सरेंडर इट टू द फंड हाउस. और शेयर बाजार में आपको सेलर चाहिए, बायर चाहिए, राइट? सो ETFs आर नॉट, आई वुड से, अगेन, a very good instrument,
कॉम्पोजिशन कॉन्सेप्ट सारा कुछ म्यूचुअल फंड जैसा ही है कि इट्स अ बास्केट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, किसी फंड हाउस ने बनाया है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का अगेन एग्जांपल, तो मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ होगा, राइट? बट द ओनली डिफरेंस इज दीज थिंग्स आर गेटिंग लिस्टेड ऑन अ शेयर मार्केट, और आप वहां पे कोई बेच रहा होगा, आप उसके पास से खरीद लो। आप बेचना चाहते हो तो कोई खरीदेगा तो आपका बिक जाएगा। सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। समटाइम्स क्या होता है कि द ईटीएफ दैट यू बाय, यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि इसकी वॉल्यूम्स क्या है, मतलब ये एक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके। क्योंकि अगर मान लो आपने रिटायरमेंट के लिए ईटीएफ जमा कर लिए, सो यू बॉट सो मेनी ईटीएफ्स and suddenly one day you need a lot of money. Ideally that day people should be there to buy your stuff that you want to sell, right? So there is a small liquidity risk in ETFs. अभी हमारा मार्केट मतलब इंडिया इन जनरल आई वुड से ETFs पे बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है अभी, और टाइम लगेगा। मे बी म्यूचुअल फंड इज अ लिटिल अहेड। म्यूचुअल फंड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एनी टाइम यू गो टू द फंड हाउस, वो आपको आपके पैसे दे देंगे। देर इज नो नीड टू फाइंड ए सेलर, सॉरी ए बायर ऑन योर यूनिट्स, राइट? वो ट्रांजैक्शन पीछे कर लेंगे, शेयर बाजार में जाके बेच देंगे, वो पैसा वहां से निकालेंगे और आपको पैसा दे देंगे। वेरी सिंपल, एंड दे आर मच adept at doing it rather than you doing it on the ETF. But generally, it's the same concept. ETF and mutual funds are built in the similar way. They are bought and sold in different places. That's the key difference. Yeah. So, Anil, NPS भी हम लोग बात कर सकते हैं. We can touch upon a bit upon NPS as well. Yeah, so yes, I think there is overlap. Yes, we can talk about it. So national pension scheme, right? Is I think or national pension scheme सरकारी है. There are, but सरकार आपके पैसे नहीं ले रही. Ultimately, it is mutual funds. Okay, so जब आप so what is the idea of NPS? The idea of NPS is कि आप अपने, if you are a salaried employee, तो आई थिंक आपके बेसिक का 10% तक आप सैलरी डिडक्ट करवा सकते हो, एंड दैट मनी विल गो इनटू टीयर 1 अकाउंट ऑफ योर एनपीएस. तो एनपीएस में 2 टीयर्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2. टीयर 2 इज लाइक एनी क्लासिक म्यूचुअल फंड. जैसे नॉट वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड्स हियर, बट कॉइन्स है जीरोधा का, या ग्रो है, ईटी मनी है, पेटीएम है, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट पोर्टल्स, और बैंकिंग के पोर्टल्स हैं जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, बेच सकते हो. सिमिलरली एक इंटरफेस है गवर्नमेंट का जो टीयर 2 कहते हैं. दैट्स अ ट्रिवियल थिंग, आप खरीदो बेचो जो करना है करो. टीयर 1 में क्या होता है दैट वंस यू पुट द मनी इन ए टीयर 1 अकाउंट, योर मनी इज पार्क्ड टिल योर पेंशन, ऑफ पेंशनेबल एज. तो आपका एक पेंशनेबल एज है, तब तक आपका पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो. जब आपकी पेंशनेबल एज आ जाएगी, वॉट एवर मनी दैट यू हैव मेड, सो हमने बात करी कंपाउंडिंग की. सो लेट्स से इफ यू आर 25-28 ईयर ओल्ड, मे बी 30 ईयर ओल्ड लेट्स से, और आपने 30 ईयर्स के लिए या 28 ईयर्स के लिए एनपीएस कर दिया. सो यू आर लुकिंग एट अ कंपाउंडिंग ऑफ मोर देन 25 ईयर्स. द मनी विल बी, इट्स एन ऑब्सीन अमाउंट ऑफ रिटर्न. अगर परसेंटेजेस में देखोगे कि कितना गुना हो गया, इट विल बी क्रेजी नंबर. And then when that money will mature, 60%, at least in today's, I don't know if there has been any changes in the recent budget announcement. I've not gone through it, but the last memory that I have is 60% of that entire corpus is given to you tax free. 1 रुपया टैक्स नहीं भरना, आप ले जाओ. और जो 40% जो पैसा बच जाएगा, let's say for example you have 1 crore of NPS amount which you have compounded over the period of your career. अब वो आपका एनपीएस पक गया, आप ले रहे हो, 60 लाख रुपए आपको सीधा कैश दे देंगे, मतलब आपको अकाउंट में आ जाएंगे, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं भरना. और जो 40 लाख उनके पास बच गए, उसके आप एन्युटी खरीद सकते हो. एन्युटी मतलब एक मंथली पेंशन आप खरीद सकते हो. सो देर इज अ सर्टन परसेंटेज in which that money will keep compounding, but then you are also drawing money from it. So eventually it will nullify.
but then you're supposed to get that money till certain event. Either you pass away, or you and your spouse pass away, or you and your spouse are both passed away, and आपके बच्चे को भी चाहिए. But the annuity amount will shift according to those kind of stuff. So it's like a regular income that you'll get after retirement. It's a wonderful product. मेरे ख्याल से इसमें 2 बेनिफिट्स हो जाते हैं आपके. टिपिकली पेंशन जो पहले होते थे, द कंपाउंडिंग इज वेरी फिक्स्ड है. 8%, 9%, 7.5%, इस तरीके का कंपाउंडिंग होता था. कंपाउंडिंग का मतलब है वो ग्रो ऐसे करता था. और हमने ऑलरेडी अभी बात करी कि जब आप इक्विटी में डालते हो, 12% इज कंसिडर्ड एज रॉक बॉटम. मतलब वो तो यार इतना तो मिल ही जाएगा. मतलब 10 साल 12 साल अगर आप डाल देते हो पैसा, तो एनुअल कंपाउंडिंग, नॉट 12% इज नॉट एट द एंड ऑफ 8 years, माइंड यू. जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, इट्स लाइक every year you are getting 12% return on what you have invested. तो एडवांटेज ये होता है कि एनपीएस में द अमाउंट दैट ग्रोज इनटू योर रिटायरमेंट फंड इज वेरी लार्ज, और रादर कंपैरेटिवली लार्जर देन ए फिक्स इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट दैट वाज देयर अर्लियर, राइट, जो पेंशन स्कीम में. बट द किकर इज कि आप कैश में 60% ही मिलेगा आपको, 40% आपका एन्युटी करना पड़ेगा. अगेन मेरा एक व्यू ये है, अभी जो सिचुएशन है इसको देख के आप एनपीएस में पैसा ना डालें ऐसा मत सोचिए. क्योंकि देखिए, सरकार आज कह रही है कि आपको 60% ही मिलेगा. हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बोले कि 80% मिल जाएगा. ठीक है. तो आई थिंक, एंड आई पर्सनली फील दैट व्हेन द एनपीएस कॉर्पस विल ग्रो, देयर विल बी मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स. द गवर्नमेंट विल फील प्रॉब्ली ए लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ, हम 80% दे सकते हैं, 20% पे एन्युटी कर लेंगे. So these things can happen, right? There are no guarantees, by the way. We are not claiming that it will happen, but something favorable may happen. पता नहीं मेरे लाइफ टाइम में दिखेगा कुछ बड़ा चेंज कि नहीं, बट those who are starting off, like as I said, 28-30 year old अगर आप हैं, तो आई थिंक आप कर सकते हैं. मे बी द थिंग्स विल बिकम मच मोर फेवरेबल by the time you hit retirement, right? So NPS is a good scheme, and I think you should subscribe to it. Plus, हमने बहुत पहले पॉडकास्ट में इसी संदीप के साथ ही बात करी थी कि पैसा निकल गया बॉस आपके अकाउंट से, चला गया एक जगह, गुफा में बंद है. बेस्ट काइंड ऑफ सेविंग्स, आउट ऑफ साइट है आपका, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और मिलेगा आपको 100%, so you will get that money. So I think those are the best kind of savings. Yeah. So Anil, इसके अलावा you just talked about the debt, equity and all. We also last time touched about the property. कि we had discussed कि एक घर तो सबको चाहिए, everybody deserves a one home on a board. But now when we look from the investment point of view, so what is your opinion for going for investment in land or apartment, or we had also touched on the debate on the REITs. buy Yeah. or rent. Yeah, we have REITs also. देखिए, हाँ, you're right. I think it is a very, it's a personal finance session, not a session really, but we are giving you orientation कि personal finance में क्या क्या components हैं. आप किसी पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट के साथ बैठेंगे, आप उनके साथ जब डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, बट द मिक्स दैट इज क्रिएटेड फॉर यू, है ना, कि आपको पैरासिटामोल कितना खाना है, आपको स्टीम इनहेलेशन कितनी करनी है, ये सब चीजें आपको आपके सिचुएशन, आपकी इनकम और आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देख बनाया जाता है. सो ए स्वीपिंग comment on buying property is also a little avoidable. लेकिन हमने इस चीज के बारे में बात करी थी संदीप. मेरा और संदीप का व्यू ये है कि for our peace of mind, I believe Sandeep, if I remember correctly, for Yes, our yes. peace of mind, we feel कि you can buy a house. जब भी आपको लगे कि आपको एक बहुत अच्छे प्राइस में अफोर्डेबल चीज आप खरीद सकते हो, आप आई थिंक यू शुड गो अहेड फॉर इट. आपको बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है.
एंड ऑल ऑफ दैट मिलता है। अगर आप इसको प्योरली एकेडमिक फाइनेंशियल कंप्यूटेशन की तरह करोगे तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके एक्सेल शीट आपको बताए कि घर खरीदना बेवकूफ़ी है। बट देन द इमोशनल बैगेज इज समथिंग विच इज क्वाइट पर्सनल टू यू। You know, what has been your relationship with money? How have you been, how is your upbringing? आपके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, आप सिटी टू सिटी घूमे हो, यू आर नॉट रियली समवन हु वांट्स टू एंकर योरसेल्फ, आपको ऐसी अंदर से आपको इस तरीके की कोई चिंता नहीं होती है, तो प्रॉब्ली यू डोंट नीड टू बाय। मतलब इट्स रियली अप टू यू, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट कहते हैं ना, मतलब वॉट एवर गिव्स यू दिस थिंग। बट वेन यू कम टू इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप इसको सीरियसली ये सोचें कि ओके इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, राइट, रियल एस्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट। माई पर्सनल व्यू इज दैट द टिकट साइज मैटर्स। अब टिकट साइज क्या है? लेट्स से आपकी नेटवर्थ, अगेन हमने नेटवर्क की बात करी थी, लेट्स से आपका नेटवर्क 1 करोड़ रुपए है। सो एवरीथिंग दैट यू ओन एक्सेप्ट फॉर द हाउस दैट यू लिव इन, इफ यू सेल एवरीथिंग ऑफ, you will get 1 crore rupees, right? Now, of all the things that you have sold, what percentage of that is real estate? तो let's say आप कहते हो कि यार 50 लाख रुपए मेरे पास म्यूचुअल फंड में पड़े हैं और 50 लाख की मेरी एक कोठी है। बेसिकली दैट मीन्स 50% ऑफ योर नेटवर्थ इज इन रियल एस्टेट। तो आप ये सोचिए 50% ऑफ योर स्टफ इज वन टिकट आइटम। मतलब जब वो बिकेगा आपको सीधे 50 लाख मिलेंगे, आप उस 50 लाख में से 5 लाख नहीं निकाल सकते, राइट? लेकिन अभी इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। लेट्स से योर नेटवर्थ इज 10 करोड़ रुपीज, आप 10 करोड़ के आपकी नेटवर्थ है, एंड यू आर ओनिंग ए 50 लाख वर्थ ऑफ लैंड। इन परसेंटेज टर्म्स नाउ दैट इज बिकम मच स्मॉलर। अब वो आपका टिकट साइज अगर आप अपने नेटवर्थ के हिसाब से देखोगे तो इट्स अ स्मॉलर एलोकेशन। इट्स स्टिल ए 50 लाख लैंड, राइट, और ए हाउस, बट द एलोकेशन इज वेरी लेस। एंड प्रॉब्ली अगर आपको पैसे की जरूरत है तो देर आर अदर एवेन्यूज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट, यू कैन लेट इट बी, राइट? सो इन माई पर्सनल व्यू टिकट साइज बहुत मैटर करता है, बट स्टिल इफ यू आर एडमेंट, आई वुड से आई विल लाइक टू गिव ए वेरी arbitrary rule. It's not a rule, but it's typically I advise people that this is what you should follow. जब तक आपके पास 25 लाख रुपए जमा नहीं हो जाते, I think you should not look here and there. You just simply look at mutual funds. नो नॉनसेंस इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर भी मैं कहूंगा टेक ए मिक्स ऑफ इंडेक्स फंड एंड फ्लेक्सी फंड्स। इंडेक्स फंड आपका कोर बनेगा, जैसे जैसे मार्केट चलेगी आपका वो कोर चलता रहेगा, और आप फ्लेक्सी फंड्स में कुछ पैसा दे दीजिए जो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहेंगे, अगर मिड कैप चला तो मूव कर जाएगा एंड ऑल दैट, राइट? सो कोर एंड सैटेलाइट कॉन्सेप्ट रहता है म्यूचुअल फंड में। जब तक आपके पास 25 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए उसका आधा कर लीजिए, जमा नहीं हो जाते, आप कुछ मत करिए, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाइए, चुप करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। जब आपके पास 25 लाख जमा हो जाएंगे, आप रियलाइज करोगे कि आपके पास 25 लाख से कहीं ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एंड कंपाउंडिंग। लेट्स नॉट फॉरगेट, आपका पीएफ कट रहा है, अभी तक तो कट रहा है। आपने होपफुली हमारी बात मान के एनपीएस में भी कुछ सब्सक्राइब किया होगा, तो वहां भी आपका पैसा जमा हो रहा है। आपके पास एक इमरजेंसी फंड बन चुकी है, राइट? दिस इज द सिचुएशन। 25 लाख से 50 लाख की जब आप जर्नी कर रहे हो, अब आप इसमें एसेट के अंदर एक छोटा सा मिक्स ला सकते हो। डोंट बी प्योरली इक्विटी। अब आप इक्विटी कर रहे हो, ट्राई टू डाइवर्सिफाई लिटिल। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट? आप इक्विटी में आप एक डाइवर्सिफिकेशन ला रहे हो। 50 लाख तक की जर्नी में आई थिंक आज के टाइम में तो मैं कहूंगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इज अ ग्रेट थिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू। सो लेट्स से 95% इक्विटी करिए, 5% गोल्ड करिए, 80% इक्विटी, 20% गोल्ड करिए। दैट मिक्स इज अगेन इट्स समथिंग दैट यू हैव टू सिट डाउन विद अ कंसल्टेंट और एनीबडी हु इज एबल टू एडवाइज यू ऑन दिस। आप वो मिक्स बना लीजिए। वंस यू हिट 50 lakhs, then you think about, by that time let's also assume कि आपने शायद एक घर खरीद लिया है, let's assume, right?
सो आपका एक घर है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर नेटवर्थ पर से। आप जरूरत पड़ने पे आप अपना घर नहीं बेचोगे, बट आपका ऑलरेडी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब आप 50 लाख से जब 1 CR की जर्नी पे जाओगे, अब आप 3 एसेट्स में डाइवर्सिफाई करोगे। यू विल हैव ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप कुछ बॉन्ड्स खरीदोगे, आप गोल्ड खरीद, गोल्ड फिजिकली खरीदने की जरूरत नहीं है, यू कैन बाय बॉन्ड्स एंड गिल्ट एंड डिजिटल गोल्ड, many you can even buy mutual funds which are gold backed, right? जो कॉन्सेप्ट हो, ये बास्केट है, उसके अंदर गोल्ड है, आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। अगेन यू आर बाइंग ए म्यूचुअल फंड विच इज पेग्ड टू द गोल्ड प्राइस, आप वो भी कर सकते हो। सो आप 3 इंस्ट्रूमेंट्स में बढ़ जाओ, हैव सम बॉन्ड्स एंड फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, हैव सम गोल्ड, हैव सम इक्विटी, मेक दिस जर्नी टिल 1 CR। आई पर्सनली फील कि 1 CR की जब आपकी नेटवर्थ हो जाएगी, फिर आपको अगर 25-30 लाख की, पता नहीं तब तक कुछ मिलेगा 25-30 लाख का कि नहीं, बट लेट्स एज्यूम कि आपको एक 40-50 लाख का कुछ खरीदना है, तो आप खरीद लो। आपने अगर 50 लाख की भी जमीन खरीद ली, दैट इज ओनली 30% ऑफ योर नेटवर्थ, बिकॉज 1 करोड़ आप जोड़ चुके हो, आपने 50 लाख का जमीन खरीद लिया, 1 करोड़ 50 लाख, सो 30% आपका प्रॉपर्टी हो गया, और बाकी रिमेनिंग, sorry, 33.33 something, and then the remaining is in other instruments, and so on and so forth. भगवान ने साथ दी और आप 10-15 करोड़ पहुंच गए, फिर किसी स्टार्टअप वार्टअप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा क्रिप्टो व्रिप्टो भी देख सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, टेक सम एग्रेसिव रिस्क, रिस्क बट आप आई ले वुड से सकते दिस हो। इज द ट्रेजेक्टरी। तो अनिल, आपने गोल्ड की बात करी, तो व्हाट डू यू रिकमेंड अबाउट सिल्वर एज अ मेटल टू इन्वेस्ट? Great, great, great. It's a very less understood instrument. आई थिंक सिल्वर का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इतना ज्यादा है, और वो इतना इरिवर्सिबल कंजम्पशन होता है कि सिल्वर एक्चुअली हमारे अर्थ में जितना सिल्वर है, सो दैट द प्रॉब्लम विद सिल्वर इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड, राइट? सो गोल्ड इज रेयरर देन सिल्वर, बट सिल्वर हैज ए एडेड प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ, क्योंकि मटेरियल साइंस के अंदर मतलब मटेरियल साइंस मतलब ऑल द प्लेसेस वेयर सिल्वर डज वेल, मतलब आपके कनेक्टर्स हैं, लेट्स नॉट गेट टू टेक्निकल, बट आई थिंक हम टेलीकॉम में रहे हैं एंड वी आर एक्सपोज टू दिस, तो हमें पता है कि कहाँ का सिल्वर यूज होता है। बट द फनी थिंग विद सिल्वर इज वो ऐसे बहुत सारी जगह पे यूज होता है जहां पे वो वापस कभी सिल्वर नहीं बनता, वो एक्चुअली खप जाता है, वो कंज्यूम हो जाता है। सो अगर ये चलता रहा तो सिल्वर विल गेट, द अमाउंट ऑफ सिल्वर विल कीप रिड्यूसिंग, and it's a great mix. And how can you buy silver? You can buy ETFs, you can buy silver ETFs, you can buy silver mutual funds. I think you can also buy digital silver in certain portals. Digital gold ज़्यादा popular है, but I think you can buy digital silver also. Not a big fan of buying physical bricks and those kind of stuff. It's a nightmare to maintain, and कहाँ रखोगे आप उसको, लॉकर वॉकर ढूंढोगे, उसमें भी पैसा जाएगा। I don't, it doesn't make any sense. But silver is a great idea. कर सकते हो आप. It can be part of your diversification mix. Any recommendation on what should be the percentage allocation between debt, equity, property, metals? Yeah, see, so it is actually, देखिए, goal oriented भी है and age oriented भी है. So it's again a little bit personal to Yeah. really comment. So anybody who is 55 years of age, we will say, अरे भैया अब तो slowly start moving out of equity and get into fixed income instruments, right? या आपके जो इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इतना ज्यादा कंपाउंड हो चुके होने चाहिए कि विद अ 3% एनुअल ब्लीड इट विल नॉट गो डाउन, राइट? मतलब these are certain advanced concepts, but not really advanced, but these are typically the concepts that float around retirement planning and all that, कि you move to safer instruments, क्योंकि अब आपको पता है कि आप रिटायरमेंट पे आ चुके हो, अब आपको ये पैसा निकालना है, अब आपको ये पैसा कंज्यूम करना है, आपके जोड़ने के दिन खत्म हो गए, अब इसको खाने के दिन आ गए।
तो जब आपको चाहिए हर महीने आपको एक पैसा निकालना है, तो यू नीड सम स्टेबिलिटी टू दी अमाउंट, राइट? आज आप देख रहे हो कि 5 लाख रुपए है, कल सुबह उठ के देख रहे हो कि अरे ये तो 2.5 लाख ही बचे। तो यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ सरप्राइजेस व्हेन यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट। तो आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कि वो पैसा रहे, सो यू मूव इट टू बॉन्ड्स। एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप छोटे एज के हो, आप रिटायरमेंट पे नहीं हो, बट आपने डिसाइड कर लिया यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एट आई डोंट नो 35 33, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हेन आर किड्स गेटिंग मैरिड नाउअडेज, बट जो भी एज है, और 8 साल पहले, 6 साल पहले, सम इयर्स अगो यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट विद दैट ऑब्जेक्टिव कि यार मेरी शादी होगी एंड आई नीड दैट मनी। सो जैसे जैसे आपकी शादी की जो जो भी आपने ऑब्जेक्टिव रखा है, वो जैसे जैसे आपका पास आता जाएगा, वॉट एवर वॉज योर टारगेट किटी, इट इज नाउ राइप फॉर कंजम्पशन, राइट? अब आप वो पैसा निकालोगे ना, टेंट वाले को और केटरर को सबको एडवांस देना है, तो आपको चाहिए पैसे, तो हनीमून पे जाना है, वॉट एवर इट इज, राइट? सो अब आप उसको क्या इक्विटी, क्या आप मार्केट में छोड़ना चाहोगे? क्योंकि कल को कोई खबर आ गई, कल को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया एंड सडनली द मार्केट गोज डाउन, तो अब आपने इतने मेहनत से पैसे जमा करे, बट दैट माइट फ्लक्चुएट। सो इट्स नॉट दैट इट्स ऑल अबाउट रिटायरमेंट, इट्स गोल ओरिएंटेड। ठीक है, सो अगर आपका गोल पास आ रहा है, इट इज वाइजर टू मूव टू सेफर एरियाज। आप उसको गोल्ड में पार्क कर सकते हो, आप उसको बॉन्ड्स में पार्क कर सकते हो। अगर बहुत छोटा टिकट है, जैसे इट्स अ फ्यू लाख रुपीज, यू कैन इवन विड्रॉ एंड पुट इट इन एफडी फॉर सम टाइम, राइट? सो दैट्स फाइन। तो ये है गोल ओरिएंटेड, एंड देन देयर इज एन एज ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जो लार्जर कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ही ज्यादा बोला जाता है कि एज -100 आपका इक्विटी मिक्स होना चाहिए। लेट्स से इफ यू आर 30 years of age and so you take 100 minus 30, 70, तो 70% आपका इक्विटी होना चाहिए। I personally feel that is too, it's not aggressive enough. I think age -100 is not a good advice, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारी longevity बढ़ेगी। Anybody who is sitting and watching this podcast, I don't believe they would like to twiddle their thumbs after 60. They will be doing something. They will be doing, they are active people, they are cerebral people. आप कुछ लिखोगे, कहीं से कुछ इनकम आ रहा होगा, तो आई थिंक यू कैन गो ए लिटिल एग्रेसिव। सो बट जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, टिपिकली एक कॉन्सेप्ट ये चलता है कि आप 100 लीजिए, 100 में से अपना एज माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो आपका इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। सो वी आर नॉट सेइंग म्यूचुअल फंड, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वी आर सेइंग इक्विटी एक्सपोजर, मतलब शेयर्स लिए आपने, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? और जो बाकी का बच गया, सो लेट्स से 30 ईयर एज है, 70% इक्विटी होना चाहिए, 30% आपके थोड़े प्रोटेक्टेड एरियाज में होने चाहिए, फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, इस तरीके से होना चाहिए। एक लार्जर एक डिस्कशन होता है इसके अराउंड। मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए। मे बी यू कैन ऐड 10 और 15 टू इट। तो आई वुड से अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो 80-85% होना चाहिए। पर्सनली मुझे वो पसंद है जो मैंने आपको पहले बताया, 25 लाख तक सोचो ही मत, चुप करके इक्विटी करो। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। Okay. Anil, probably we missed one point when we were discussing about property is REIT. So any idea Yes, about REIT. REIT? Yeah, so InvITs, REITs, to explain it very simply, जैसे दो चार ही REITs है, REITs is not very popular right now. In India, But yes. let's say बैंगलोर में एक ऑफिस स्पेस है बहुत बड़ा, एंड बहुत बढ़िया रेंट आता है वहाँ पे। गूगल का ऑफिस है, फेसबुक ऑफिस, दिस इज अ हाइपोथेटिकल थिंग। सो इट्स अ मेजर बिग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, एंड it is going up in value because it's in a very prime place in Bangalore, and it is also generating a lot of rental income. ठीक है, तो रीट्स क्या करते हैं? रीट्स इज अगेन इट्स ट्रेडेड ऑन द शेयर मार्केट। आप जाके रीट्स खरीद सकते हो। अगर आपने रीट्स खरीद लिए, तो हमने बात करी थी कि कंपनी जो पैसा बनाती है आपको डिविडेंड मिलता है उसका। वी टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर कि कंपनी ने जो भी पैसा बनाया वो आपके शेयर होल्डर को डिविडेंड की तरह दे देते हैं। तो रीट्स क्या करते हैं? दे विल हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, दे विल, सो दे आर नॉट ओनिंग ए बिजनेस, माइंड यू, दे आर एक्चुअली owning or probably subleasing for a long amount of time
a commercial property or which is creating certain rental yield, ठीक है, and like you get paid a dividend, ये लोग क्या करेंगे, वो yield को, rental yield को आपको dividend की तरह दे देंगे. So this is one way when you make the way to make money out of REITs. और दूसरा क्या है यार, जहां ये बिल्डिंग थी उसके पड़ोस में एयरपोर्ट बन गया, सडनली बिल्डिंग की वैल्यूएशन बढ़ गई. सो अगर बिल्डिंग की वैल्यूएशन बढ़ गई, रेंटल भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगी, सो सडनली द REITs विल आल्सो गो अप. तो एग्जैक्टली द वे वी टॉक्ड अबाउट इक्विटी एंड कंपनीज, अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपके शेयर के प्राइस बढ़ गए, अब आप अपना शेयर बेचोगे तो यू विल मेक ए सर्टेन गेन on the difference of buy price and sell price, right? So REITs be, in a very very general sense, this is what REITs is. REITs का dividend yield is not very high. मतलब जैसे typically rental yield यहाँ कहते हैं 3 to 4% is the rental yield. Even in large cities आप 3% से ज़्यादा rental yield नहीं expect करते annually, right? REITs are around that, right? And plus liquidity का भी issue है थोड़ा REITs में. As I said, it's exchange traded. तो अगर आपने बहुत सारा REITs से आपको इकट्ठे बेचना है, तो you have to make sure that there are enough volumes in REITs. But please keep watching that space. It's an interesting space. आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ट्रैक्शन नहीं है मार्केट में REITs के लिए, बट मुझे somehow लग रहा है कि the amount of infrastructure that has been built in the country, the amount of smaller cities that are becoming bigger cities, and how the bigger cities are even growing, मुझे लगता है REITs में बहुत opportunities आएंगी. There will be more people, more companies which will be launching their REITs, and I think you can definitely take participate in that. So keep watching that space. Great. So Anil, let's quickly touch upon the risk factor. जब हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, तो आई बिलीव वी शुड आल्सो टच अपॉन the risk associated with all these investments. Yeah. क्या आप बैंक में पैसा रखते हो तो रिस्की है? So I think many people will not know. So banks के अंदर आप FD करते हो, it's considered to be very very safe. But if you look at the fine print, there is a top cap. अगर आपने किसी बैंक में पैसा जमा करा है and the bank goes under, there is certain limitation जिससे ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा. So अगर आपने crores of rupees की FD करी है और अगर बैंक डूब जाती है, अगेन बैड थिंग्स टू से, लकीली मैं किसी नाम नहीं ले रहा, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आपको सारे पैसे मिल जाएंगे. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस देयर. सो देखिए, रिस्क तो आएगा ही आएगा किसी भी चीज में, राइट? टिपिकली जो वाइजर तरीका है देखने का, विच इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. बट इसका एक प्रॉब्लम भी है. लोग सोचते हैं कि पागलों की तरह रिस्क ले लो, क्या पता बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है. हाई रिस्क विल गिव यू हाई रिवॉर्ड फॉर श्योर, बट द हायर द रिस्क, द लोअर द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हिटिंग दैट रिवॉर्ड. सो आप क्रिप्टो खरीद लो, हाई रिस्क गेम है, रिवॉर्ड जबरदस्त है, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ यू टू हिट दैट रिवॉर्ड इज एक्चुअली इनवर्स to the amount of risk that you take, right? So इक्विटी में आज किसी भी म्यूचुअल फंड को आप खोलोगे, रिस्कोमीटर है. सेबी ने मैंडेट करा है कि रिस्कोमीटर आपको दिखाना है. अब आप बहुत जगह देखोगे, इट्स लाइक अ स्पीडोमीटर इन द कार. मतलब एक ऐसे ग्रेडियंट है और आपकी एक सुई जा रही है ऐसे. और अगर इक्विटी है तो बाय डिफॉल्ट वो हाई रिस्क है. तो आप देखोगे कि फिर ये दिया ही क्यों है, सब कुछ ही हाई रिस्क है. बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. अगर आप इक्विटी खरीद रहे हो, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट. आप देयर इज नो गारंटीज. एवरीथिंग इज एन एक्सटेंशन टू व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट. एंड ऑल द पंडित्स दैट मेक फोरकास्ट के ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो इंडिया जैसी इकोनॉमी हम जिस तरीके से गुजरे हैं उस तरीके के दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं कि यार जापान में क्या हुआ था, ब्राजील में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हुआ था, एंड दे आर काइंड ऑफ फोरकास्टिंग कि हाँ, हमारी कंट्री का भी शायद यही ट्रेजेक्टरी रहेगा, हम इसी तरीके से जाएंगे, राइट?
सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फ्रॉम हिस्ट्री. तो शेयर मार्केट में जैसे आज हमने बड़ा इजीली बोल दिया कि यार 12% तो रॉक बॉटम माना जाता है. रॉक बॉटम माना जाता है बिकॉज दैट्स व्हाट हिस्ट्री डिक्टेट्स. देर आर नो गारंटीज व्हाटसोएवर. अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स हैं, आपको लगता है कि मेरा पैसा बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन इक्विटी इज नॉट फॉर यू. बट आप सोचोगे, आई मीन व्हाई पीपल पुट मनी इन इक्विटी? क्योंकि इक्विटी का क्या होता है ना, व्हेन यू जूम आउट अ लिटिल बिट एंड यू लुक एट ईयर्स, द लाइन लुक्स प्रीटी फ्लैट. आपको लगेगा कि यार ये तो सीधा ऊपर ही जा रहा है. बट व्हेन यू जूम इन एंड गो एंड लुक एट अ स्लाइस ऑफ डेटा, आप अगर एक हफ्ते का डेटा देखोगे, आप एक महीने का डेटा देखोगे, तो आपको इसमें इतनी वॉलेटिलिटी दिखेगी. ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कभी कभी मंथ ऑन मंथ सब कुछ नीचे ही जा रहा है. लेकिन जब आप जूम आउट करते हो तो आपको दिख रहा है यार तो ऊपर जा रहा है. आप, आई थिंक आई एनकरेज फॉर द व्यूअर्स, कुछ मत करो, गूगल पे जाके एनएससी निफ्टी आप करो, आपको इंडेक्स आ जाएगा. मल्टीपल ईयर्स हैं, 1 मंथ करो, 5 डेज करो, 1 मंथ करो, 1 ईयर करो, ऐसे जाते जाओ, मैक्स आएगा. जब आप मैक्स पे क्लिक करोगे ना, पूरी नीली लाइन आएगी सीधे सी ऊपर जा रही होगी. ठीक है, लेकिन आप कुछ बीच के पीरियड्स उठाओगे तो इट इज लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इज देयर, राइट? तो रिस्क इज दैट. अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो देर इज अ वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट नॉट ओनली यू विल लूज मनी, यू माइट लूज बिग मनी अगर आपने गलत बेट ले लिया है तो. हाउ डू यू सेव गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम रिस्क? इक्विटी मत खरीदो. इक्विटी इज अ प्रो गेम. आपको बहुत समझ होनी चाहिए. इक्विटी में ट्रेडर्स लोग बैठे हैं, मार्केट मूवर्स बैठे हुए हैं, एफआईआई खरीद रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, उसके ऊपर जो बाकी जो लोग कुछ कुछ पढ़ पढ़ के आ जाते हैं वो लोग भी पड़े हुए हैं मार्केट में, उछल कूद रहे हैं. तो लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग. अगर आपको एग्जैक्टली समझ नहीं है, आप डायरेक्ट इक्विटी में मत जाइए. डायरेक्ट इक्विटी भी आप पकड़ के बैठे रहोगे तो हो सकता है वो भी आपको बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट निकाल के देगा, बट देर आर नो गारंटी. सो just to simplify, when you take a particular share, the risk is pretty high. When you buy a mutual fund, you are buying a basket of shares. Relatively, the risk is lesser. Reward is also lesser. शेयर्स में मल्टी बैगर हो जाता है, 2 साल में 3 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा. म्यूचुअल फंड में प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा क्योंकि इट्स अ बास्केट ऑफ शेयर्स. तो रिस्क कम हो गया, रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा. आपका पैसा 10 गुना 100 गुना नहीं होगा 2 साल में 3 साल में, बट आपको एक स्लो कर्व मिलेगा. आपको उतना भी रिस्क नहीं लेना. अब बॉन्ड्स खरीद लीजिए, एफडी कर लीजिए, गोल्ड खरीद लीजिए, और छोटा कर्व है, धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा. बट एनी पॉइंट इन टाइम योर मनी विल नॉट बी लेस देन व्हाट यू इन्वेस्टेड. Yep. So related to it, also the concept of liquid and illiquid investments. So that will be देखिए, important. लिक्विड और इलिक्विड का मतलब ये होता है, लिक्विड थोड़ा सा बहुत ही थ्रोन अराउंड टर्म है, बट बेसिकली व्हाट इट मींस इज हाउ इजीली कैन यू एग्जिट. Hmm. अगर आपने कहानियां सुनी होंगी, प्याज की बहुत ज्यादा फसल हो गई और फार्मर परेशान हो गया और उसने फ्रस्ट्रेटेड होके रोड पे प्याज फेंक के चले गए, मंडी तक भी नहीं गए. तो क्या हो गया? मतलब इज इट ऑफ नो वैल्यू? इज ओनियन ऑफ नो वैल्यू? यस, इट इज ऑफ वैल्यू, बट देयर इज नो बायर. द गवर्नमेंट इज सेइंग कि यार मैं 3 रुपए में खरीदूंगा, और वो बेचारा फार्मर अपना हिसाब लगा रहा है कि यार अगर मैं प्याज यहाँ से मंडी तक ट्रांसपोर्ट करूंगा उसमें मेरे को 10 रुपए लग जाएंगे, तो 3 रुपए मिलेंगे तो मेरा तो 7 रुपए का नुकसान ही है. तो इवन बेटर टू थ्रो इट अवे राइट हियर. बहुत ही नेगेटिव एग्जाम्पल है, बट इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल. अगर आप थोड़ा सा भी ट्यून्ड अप हो, आपको ये इस बारे में पता होगा. सो हुआ क्या है इसमें? नोबडी इज देयर टू बाय, नोबडी वांट्स योर स्टफ, सो यू कांट एग्जिट. ठीक है, आप एक और कहानी आपने बीच में पेपर में आया था, कोई एक शेयर है, आपने अगर ये खरीद लिया होता तो आपका पैसा 1200 गुना हो जाता. ठीक है, और आप रात को सोते रहो काश कोई मुझे बता देता, ठीक है, और मैं खरीद लेता. मजे की बात यह है कि जब वो 1200 टाइम्स जब हुआ, उससे पहले था, इट वॉज टोटली इलिक्विड, देयर वेर नो सेलर्स. अगर आपको भगवान आके बता भी देता ना कि ये 1200 गुना बढ़ेगा, आप ले नहीं पाते क्योंकि कोई बेच ही नहीं रहा, तो आप लोगे कैसे? सो
मार्केट, शेयर मार्केट में क्या होता है कि फॉर इट ट्रेड टू हैपन देयर हैज टू बी ए बायर एंड अ सेलर एंड a price at which they agree to do the trade. जब तक ये तीनों चीज नहीं होगी ट्रेड विल नॉट एग्जीक्यूट. तो आपने मन बना लिया कि यार मैं तो 120 रुपए में बेचूंगा, बट नोबडी वांट्स टू बाय, सो आपकी ट्रेड नहीं होगी, तो देयर इज नो बायर. इलिक्विड का मतलब ये है कि देयर इज नो पार्टिसिपेशन इन द मार्केट ओनली, कोई आ ही नहीं रहा खरीदने बेचने. टिपिकली दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन जब आप कोई टिप्स सुन के, व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख के, कोई आपने कोई कंपनी खरीद ली, पता नहीं इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ, कोई कंपनी आपने सुना भी नहीं क्या है, 1 रुपए का शेयर है, ये है वो है, खरीद लिया आपने, आपके पास आ भी गया, बट नाउ देयर इज नो एक्टिविटी ऑन द मार्केट, इट इज इलिक्विड, यू कांट सेल इट. पकड़ के बैठे हो आप, 10 रुपये भी अगर वो भाव दिखा देगा, अगर आप जाओगे और बोलोगे कि बेच दो इसको, नोबडी इज रेडी टू बाय फॉर 10 रुपीज. सो ये होती है लिक्विडिटी जहां पे आप एग्जिट नहीं ले पाओगे. एंड टिपिकली लार्ज कैप्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी लिक्विड. HDFC बैंक के शेयर आप 1 करोड़ जाके बेच दो मार्केट में, आज खरीदने वाला मिल जाएगा. सो दोज आर हाईली लिक्विड, वेरी लार्ज फ्लोट, मतलब बहुत सारे शेयर्स उनके मार्केट में हैं, फ्लोट कहते हैं उसको, एंड देयर आर लार्ज वॉल्यूम्स, है ना. टर्नओवर, डेली बेस का टर्नओवर इतना ज्यादा है कि आप अगर उसमें अपने कुछ शेयर्स बेचने चले जाओगे तो आराम से बिक जाएगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयरली लिक्विड एंड अ वेरी लिक्विड share. For example, if you talk about property, property is It's what? illiquid. Illiquid. Yes, क्योंकि it बेचने is में considered आपको, illiquid. हाँ, Yes, आपको काफी मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, काफी टाइम लगाना पड़ता है इसमें. correct. आपने एक सुना होगा, मतलब व्यूअर्स ने सुना होगा, डिस्ट्रेस सेल, फायर सेल, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं प्रॉपर्टी में. अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे हमने काफी सुना था ये, क्योंकि सडनली आपको बहुत पैसे की जरूरत है, आप बेचना चाह रहे हो, बट एट दैट टाइम यू आर नॉट गेटिंग एनीबडी टू बाय. तो इन ऑर्डर फॉर यू टू सेल, आपको आपके प्राइसेस गिराने पड़ रहे हैं. आपको पता है कि ये 50 लाख में बिकेगा, लेकिन आपको इसको 40 लाख में, 35 लाख में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि कोई खरीदने वाला मिल नहीं रहा. तो इट इज कंसिडर्ड एज इलिक्विड. जब बाजार ऊपर ऊपर जा रहा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार मैं आज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, तो कल 4 लोग के फोन आ जाएंगे कि हाँ जी आप कितने में दे रहे हो. लेकिन जब मार्केट खराब है, लोगों के पास पैसे नहीं, रिसेशन है, तब आपको तब अगर रिक्वायरमेंट पड़ गई और आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, इट इज अ नाइटमेयर. यू विल स्ट्रगल टू फाइंड अ बायर. सो इट इज कंसिडर्ड इलिक्विड. यस. Great. So, Anil, the last couple of topics before we end today's session is importance of creating the will and putting the nominations in either the bank accounts or maybe your DMATs account. We could talk about that a bit. Yeah, I mean, I think after age, all of this falls in place, but I think no harm in doing it early also. Hmm. Nomination start right from your employment. आपने कहीं एक कोने में कुछ लिखा होगा, ट्रस्ट में आपके PF में वो नॉमिनेशन जा चुका है. And typically people when they start their job, they inadvertently put their parents' name there. ठीक है. And there can be cases where अब आपकी जॉब चल रही है, you may lose that parent, and then family dynamics may change. You're married, you're moving away from that city. तो अब आपने तो जब नौकरी शुरू करी थी, आपने फॉर्म भर के दे दिया था कि भाई मेरे PF के नॉमिनी क्या है. हो सकता है that parent is no more, right? Typically those things happen. बट ये आपके दिमाग से निकल चुका है. लेकिन PF डिपार्टमेंट को पता है कि जी आपके नॉमिनी तो ये है. सो नॉमिनी का मतलब क्या है? रफली स्पीकिंग, इन एनी एडवर्स इवेंट वेयर यू आर नॉट देयर, who is entitled for whatever you have compounded or aggregated in any of these instruments. तो जब आप म्यूचुअल फंड से म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है जो फंड हाउस देता है आपको. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट. जो भी फोलियो नंबर है आपका,
उसके डिटेल्स एक्यूरेट होने चाहिए, आपका ईमेल आईडी एक्यूरेट होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर एक्यूरेट होना चाहिए। मेक श्योर दैट आपने उसमें नॉमिनेशन भर रखा है, क्योंकि इन योर एब्सेंस म्यूचुअल फंड वाले विल अलाउ योर नॉमिनी टू विड्रॉ दैट मनी। सेम गोज फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स। बैंक्स में तो आई थिंक इट्स नाउ फेयरली मैंडेटरी, आपको करना ही पड़ेगा। बट इन केस द नंबर्स आर चेंजिंग, इन केस द ईमेल आईडीज आर चेंजिंग, बी वेरी कॉग्निजेंट अबाउट इट। आप एक छोटा सा एक एक डायरी, रेड बुक बोलते हैं, कभी कोई ब्लैक बुक बोलते हैं, टिपिकली पहले ये सब एक प्रथा चलती थी जहाँ पे दे यूज टू राइट दीज थिंग्स डाउन, मेक ए पॉकेट बुक एंड पुट इट समवेयर, टिपिकली लॉकर में रख देते थे और बोलते थे कि भाई कुछ हो जाए तो वहां पे लिखा हुआ है, आप देख लेना। आजकल डिजिटल जमाना है, लोग ये करते नहीं है, बट आजकल तो हर चीज का पासवर्ड भी आप you know very very stupid, but you put things on your phone itself. But highly recommend this. I think you should, no matter your age, right, no matter your age, create a red book or a black book. uh, go through all the places where you have parked money, including property. Make sure that all of those assets that you have are having some nominations marked, और अगर हो सके तो उस नॉमिनेशन के एविडेंसेस की भी आप एक कॉपी अपने पास रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, ऑलरेडी द फैमिली वुड बी इन अ डीप प्रॉब्लम, शॉक एंड डिस्पेयर इफ समथिंग हैपेंस, और उसके ऊपर अगर पेपर वर्क का भार भी आ जाता है तो इट बिकम्स क्वाइट problematic, no matter what your age is and what your survivor's age is, right? It is difficult. इंडिया है, एवरीथिंग इज नॉट डिजिटल, इवन दो वी आर इन डिजिटल इंडिया। तो पेपर वर्क करिए, थोड़ा नॉमिनेशंस पे ध्यान दीजिए। एवरीथिंग हैज नॉमिनेशंस, म्यूचुअल फंड्स हैव नॉमिनेशंस। ऑल द शेयर्स दैट यू बाय दे सिट इन ए डिपॉजिटरी अकाउंट, मतलब आपका एक डीमैट अकाउंट रहता है, उसमें जमा होता है, या सीडीएसएल में होता है, उसकी नॉमिनेशन होती है। अगर आपका बैंक का डीमैट है तो ऑब्वियसली बैंक नॉमिनेशंस कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर आपका इंडिपेंडेंट होल्डिंग है, सीडीएसएल है, ऐसा कुछ है, वहां भी नॉमिनेशन होती है, आप वो भी करिए। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन होती है। अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं तो बॉन्ड्स टिपिकली आजकल जो लिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं वो आपके डिमैट में जमा होते हैं। सो अगर आपका डिमैट की नॉमिनेशन है तो इनवर्टेंटली दैट बॉन्ड विल गेट हैंडल्ड। अगर आपके अनलिस्टेड बॉन्ड्स हैं तो आपको पूछ लेना है, एंड इफ इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ऑब्वियसली आपको पूछ लेना है कि अनलिस्टेड बॉन्ड है, इसकी रिक्लेमिंग कैसे होगी, इसको कैसे आप रिट्रीव कर सकते हो। So you need to be cognizant of all of that. You should be aware of that and do that paperwork. Great, great. Thanks, Anil. So, Anil, we are almost on the verge of closure of this session as well. So, we have done 3 sessions, part one, part two, part three. And I believe these have been very useful for all the audience. जो भी कोई देखेगा उसको definitely फायदा मिलेगा. And I do have the feedback for the part one, part two, and whosoever watched it, they are finding it useful for sure. Because Okay. we have given a lot of time. You have talked about a lot comprehensively about almost all the aspects of personal finance. So it has been a basic to intermediate kind of knowledge Yeah. sharing. Yes. But people who are watching, they need to do a lot of homework. Go to the certified financial consultants or advisors to start their personal journey if they have not started, or they want to relook after listening to these podcasts. They should do that. And definitely there's a lot of money coming in the pockets this year now after the Yeah. budget, so which will be a euphoria kind of thing. So before somebody goes and spends, do hear this podcast and Mhm. get understand the difference between fire and paisa jama karna padega. So I read a very beautiful quote, I believe yesterday, that if you have started working on your health, it will take minimum 1 year and to show you the results. And if it has started working on your career, it will, you know how much time we go to school, colleges, and all that, right? It takes that much. So, but why we are in so much hurry to make money, right? It doesn't come that easy.
It So doesn't. you have to start your journey of making the money. If you're not born with a silver spoon, you have to Yeah. build it. आपको पैसा बनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है. तो आपको टाइम देना पड़ेगा और राइट टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड Yes. वट एवर यू हैव शेयर्ड अनिल, आई बिलीव हमारा मकसद है कि अगर कुछ एक या दो लोग भी बच्चे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली फ्रॉम द स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज, दे आर एबल टू डू स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी इन द राइट डायरेक्शन. तो Yeah. हमें काफी खुशी मिलेगी. यस, दैट इज वेरी Absolutely. इंपॉर्टेंट. Yeah. Absolutely. And I would also like to add that to the listeners, please spread the word. And जो आपके पास नॉलेज आप एक्वायर कर रहे हो, राइट नॉलेज, वो उसको आप अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में, अपने वाइफ्स को, अपनी मदर्स को जरूर शेयर कीजिए. Okay, Yes. otherwise, generally, we are part of the middle class. Okay, we had that thing that the knowledge doesn't get shared, especially the financial knowledge. यहाँ Yes. पे रहता है कि यार पिताजी की विल बन गई है, उसी के बाद उसी वक्त जाते 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 बात होएगी, उससे पहले पैसों की बात नहीं होती थी. ठीक है, the Yes. times have changed. We need to Yeah. sit together with our parents, with our wife or husband, with our children, and we need to talk freely about all these things. Share the knowledge कि Yes. कहाँ पे पैसा है. जैसे अभी आपने समझाया अनिल कि नॉमिनेशंस क्यों जरूरी है, विल होना जरूरी है. एक टाइम पे पहले Yes. ओल्ड एज में पेंशन, रिटायरमेंट में विल बनती थी, बट नाउ वी आर कमिंग टू द एज में प्रॉब्ली 40s 30s और 40s में विल बन जानी चाहिए. Yes. You should Yes. have a Absolutely. decent Absolutely. will available. Yes. So, 40s के बाद तो clear हो जाना चाहिए. I will yeah, just add that anybody who is still overwhelmed hearing all this stuff, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप यंग हो और छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डिसिप्लिन. और आप शुरू absolutely, कर दो. absolutely. मेक मिस्टेक्स. नोबडी इज गोइंग टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम. आप परफेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं सिलेक्ट कर पाओगे. आप मान लो कि आपसे गलती होगी तो आपको घबराहट कम होगी. और ऐसा कुछ नहीं है जो जो ठीक नहीं हो सकता. Initially, it's not that you are going to invest crores of rupees. आप initially, anyways, you're going to start small. So give yourself liberty, make mistakes. Essentially, हमारा मकसद ये है कि आप बहुत ज्यादा गलत चीजें ना करें. आप ट्रेडिंग पे ना चले जाए, फास्ट मनी पे ना करें. जैसे जैसे संदीप ने भी बहुत अच्छे से कहा कि वाई आर इन हरी टू मेक मनी. इट विल कम स्लो. वेल्थ बिल्डिंग तो स्लो ही होगी. ये सब तो गिमिक्स हैं. ये मान लीजिए कि मत करिए इसमें. स्टार्ट स्मॉल, पिक ए म्यूचुअल फंड, यहाँ डालिए वहां डालिए, थोड़ा बहुत सीखिए. धीरे धीरे व्हेन यू आर ट्यून्ड इन, आप खुद सीखोगे. आपके यूट्यूब फीड में अपने आप इस तरीके के वीडियोस आने लगेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी. Yes, and be very well aware of the frauds. Cyber fraud काफी होते हैं. Those are real. Yes. Yeah, आप समझिए. absolutely. क्योंकि जहाँ से आपने थोड़ा सा भी इग्नोरेंस दिखाया, there are the sharks available which will eat Yeah, you away. आपका सारा मेहनत का पैसा सेकंड्स में गायब हो जाएगा. So just be super careful about your money. very Who careful. you trust, that is very important. Yeah. कोविड के बाद से काफी कुछ जानकारी सोशल मीडिया में, वी शुड बी वेरी थैंकफुल. दे आर अ वेरी good handles in social media, and Excellent. good people have Excellent. come forward to share their knowledge. प्री कोविड उतना नहीं था, लेकिन कोविड के बाद बहुत ज्यादा हो गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो फाइंड आउट द गुड हैंडल्स इन आइदर इन एनी ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल्स. उनको Yes. स्टडी कीजिए. एंड बिफोर यू पुट योर मनी, आपने कहा कि गलतियां होंगी, बट बिफोर, मेरा पॉइंट ये है कि गलती करने से पहले आप स्टडी कीजिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड मटेरियल विच इज फ्रीली अवेलेबल. Yes. Yes. विच इज फ्रीली अवेलेबल. तो आप उसको आप अब ये मत सोचिए कि आपको पूरा 2 साल 3 साल का कोर्स करोगे उसके बाद इन्वेस्ट करोगे. स्टार्ट योर जर्नी एंड देन स्टार्ट पुटिंग योर मनी, बट स्टार्ट लर्निंग एज वेल. there's a Yeah. good amount of knowledge available in any of the social media. आप ट्विटर देखना चाहें, लिंक्डइन देखना चाहें, यूट्यूब है, there is very rich information, but try to find out what is the correct information, what is the bad information, and be quite far away from the frauds, cyber scams, and all that. Yes. So Absolutely. Anil, first of all,
that I would like to say thanks to you. You have given a lot of time. मेरे ख्याल से 6-7 घंटे हमने आपने यहाँ पे आके अपना शेयर किया है एंड दिस इज सुपर सुपर इनवैल्यूएबल नॉलेज. ये अगर नॉलेज मुझे मेरे करियर के शुरू में किसी अनिल ने मुझे दी होती तो आई वुड हैव बीन मच मच रिचर देन व्हाट आई एम टुडे फॉर श्योर. सो सेम इट विथ मी संदीप, सेम विथ मी. मुझे भी कोई अनिल मिल गया होता तो शायद आई वुड हैव बीन Huh. much So wealthier. But yeah, it is good that somebody is catching up, and thank you so much. It makes a lot of difference that you have taken your personal time out, and now we are recording in the late in the night. It matters a lot. But we are doing नहीं for संदीप, certain यू आर, cause. मैंने मैंने शायद पहले पॉडकास्ट में कहा था कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि यू आर डूइंग दिस. We know that we are doing this out of our own passion. We have different paths. You're doing this for youth. I really really appreciate it. जो आपने बात बोली ना कि काश हमें कोई बता दिया होता. I think this is what your podcast and all the series of videos that you have on your channel is all about. Anybody who is curious, अगर उसको थोड़ा अर्ली कुछ चीजें जाननी है, मैं तो कहूँगा पर्सनल फाइनेंस पे हमने we have just scratched the surface. But I'll encourage the viewers to go and check out other great conversations that Sandeep has on his channel on diverse topics. I think they are all valuable and a good use of your time. I think मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, कम्यूट कर रहे हो, यार ज्ञानवर्धन कर लीजिए. It's beneficial. 1.2x स्पीड पे आप देख सकते हो. मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, मेरे गेस्ट भी आराम से बात करते हैं, तो यू कैन Yeah, वॉच 1.2 1.3x जहाँ पे आपको कन्वर्सेशन समझ में आ जाएगा. नो नीड टू वॉच आवर फेसेस ऑन द वीडियोस. yep, You can yep, hear yep. them as well. But you will be, the idea is that you understand the concepts which you are talking about. This is crucial. This is very, very important. Absolutely, absolutely. Great. So It Anil, was thank you so much. great fun, Yeah, Sandeep. Great fun. absolutely. Thank you. Same here. Thank you so much, Anil. Thank you so much. Good night. Take care. Good night, Sandeep.